Content has always been in my blood since I was a child. If things are going wrong in your life, you are definitely going in the right direction. So things should go wrong, make good decisions, take your own responsibility, थिंक वाइजली. लाइक इंस्टाग्राम पे आप देखो ऐसी चीजें ही चलती है जो कि या फिर बहुत ज्यादा क्रिंज है, बहुत ज्यादा मीनिंगलेस है, या बहुत ज्यादा मीनिंग है उसमें और बहुत ज्यादा अच्छा है. सब किया है मैंने एंड सब में कुछ भी नहीं सिखाया. गलती से भी मत लेना. क्या है, मैं आप रील बनाना सीख लोगे, कंटेंट बनाना कैसे सीखोगे? अभी यार बहुत ही ज्यादा ब्लड बात चल रहा है इंस्टाग्राम पर. ये बंदा ना यार, ये जो बना रहा है ना, ये कोई बना ही नहीं रहा. द डे यू फील यू आर सक्सेसफुल यू विल गेट स्टक. वर्ल्ड विल पास यू. कम बोलो और इम्पैक्टफुल बोलो. अब ये भी एक लेसन ही है जो मैं दे रहा हूँ. आपके दिमाग में आपका आइडिया हमेशा सबसे बेस्ट होता है. यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग इन योर लाइफ इफ यू आर नॉट वेकिंग अप एक्साइटेड and sleeping tirelessly. This is how Instagram and Facebook works. Welcome to Shut Up Saransh. In this episode, we had a conversation with Harshak Sinha, a 19-year-old entrepreneur and a content creator with more than 130k followers on Instagram, about how to make it big in the social media space. What is virality in Reels? What is the big game behind the algorithm of Instagram and Facebook? And how is it to take this unconventional path of not going to college and starting a business at 19? This is the second podcast, and we are already over 1 hour and 40 minutes. This podcast is a gold mine for all the 15, 16, 17 year olds out there. This complete podcast is a must watch for everybody. Enjoy this episode with Harshak Sinha only on Shut Up Saransh. 3, 2, 1, and yes, we are live. Hi guys, welcome to Shut Up Saransh, the podcast where we talk about everything on the intersection of startups, money, hustle, and life with people under 25 doing crazy shit. Today we have with us someone who has already escaped the matrix, didn't go to college, now has his own company in Mumbai. He's a 19-year-old entrepreneur and market ka aadmi, as he is known. He has over 130k followers on Instagram where he talks about business, marketing and consumer psychology. Founder of Digity, Harshak Sinha. Welcome Harshak to the podcast. सौरांश भाई इतना ज्यादा जबरदस्त इंट्रो दे दिया है. अब तो एकदम ऐसा लग रहा है, एकदम अब तो एकदम कप वप ऐसा दिखाना पड़ेगा भाई कि अरे या सौरांश टेल मी या ब्रो. यस ब्रो. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आई एम वन ऑफ यू एंड ऐसा कुछ नहीं है भाई कि बहुत ही ज्यादा ऐसा कर लिया है. कुछ बस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हर रोज मेहनत कर रहे हैं. बस वही है, सौरांश भाई जैसे ही है भाई. वन ऑफ यू गाइस एंड ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, साथ में काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सौरांश एंड आई रियली लाइक द नेम. नहीं नहीं भाई, आपका नाम मेरे को काफी अच्छा लगा. शटअप सौरांश पॉडकास्ट का जो नाम है काफी इंटरेस्टिंग है. एंड स्पेशली जिस तरीके से आपने बोला वी टॉक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स. एंड आपका जो आई कैन से टारगेट है अंडर 25 वाला, दैट इज स्पेशली नीडेड राइट नाउ, यू नो. तो यू हैव लाइक आई एम ग्लैड दैट यू find me credible to be here and talk to your audience and talk with you definitely. तो यू प्रोबेबली हैव फेल्ट कि मैं कुछ सिखा पाऊंगा या मैं कुछ सीख पाऊंगा आपसे. तो डेफिनेटली इट्स माय प्लेजर दैट यू हैव इनवाइटेड मी. सो Thank you so much Harshak. इतने kind words के लिए. कभी चाय की ऐसी चुस्की आती रहेगी करके तो इग्नोर कर देना. हाँ बिल्कुल. गाइस हमने ट्राई किया था मुंबई भिजवाने के लिए एक कप चाय, बट बेचारा इतना बिजी है, खुद को ही बनानी पड़ी. वही है, एकदम दिल्ली से आए. चलो लेट्स स्टार्ट. चलो अब करते हैं. तो like my first question is, most of the people know Harshak as a creator with loads of followers, but what was the initial journey like before even making content ek baar bhi? What all gigs you did and you know like how was that experience? See, I'll be very honest with you. In content creation right now, I still feel that अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी है. Because मेरे सिर्फ आई थिंक 200 या 250 पोस्ट में 100 के क्रॉस हो गए. बिकॉज द वे मैं आगे बताऊंगा कि मैं किस तरीके से कंटेंट पे अपने काम किया था कि इतने शॉर्ट टाइम में मेरा इतना ज़्यादा फॉलोअर इंक्रीज हो गया था. प्लस आई द थिंग इज दैट कंटेंट हैज ऑलवेज बीन इन माय ब्लड सिंस आई वाज अ चाइल्ड. मेरे को बचपन से कैमरा चलाने का,
बात करने का, ड्रामाज में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज्यादा शौक है। एंड बाई बचपन, आई मीन सिंस माई फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब से मेरे को थोड़ा दिमाग आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में थोड़ा हरकतें वैसी थी, बट उस समय उतना नोटिसेबल नहीं था, ना मेरे को उतना दिमाग था। बट फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड देयर इज नॉट बिन एन ईयर जिस ईयर मैंने एक यूट्यूब चैनल ना खोला हो, या फिर कोई वीडियो ना बनाया हो। मैंने अप्रोक्सीमेटली आज तक 10 से 12 यूट्यूब चैनल खोले। एंड मैंने दो तीन पे ऐसा सीरियस वीडियोस भी हो गया था, एक पे तो 2-3 हजार सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। अभी बता नहीं सकता, ऑब्वियसली नहीं बता सकता, प्लीज अंडरस्टैंड। तो मतलब वही है कि कंटेंट हमेशा से मेरे इसमें रहा है। टू टॉक अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, आई वाज समवन हु वाज मैडली इन लव विथ बिजनेस नॉलेज, बिजनेस स्टडीज। हमेशा से टेंथ के बाद भी आई स्कोर्ड रियली वेल इन टेंथ। तो टेंथ के बाद भी सबने बोला कि यू शुड गो विद साइंस, ये वो जैसे होता है एज मेरे यूजुअल। साथ तो वही हुआ भाई है भाई। 94%, 94% लाए हो भाई, साइंस लो यार। बट द थिंग इज, मेरे घर से आई वॉज, माई पेरेंट्स आर रियली वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माई मॉम एंड माई डैड। लाइक दोनों लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव। दे आर लाइक, you should take your own decision, and that quality and that freedom which they have given me have helped me a lot till date and is helping me right now. Right now I don't find myself very successful or very, I can say, बहुत ही ज़्यादा followers है या content में अच्छा है, business में अच्छा है. I still find myself lacking at a lot of verticals, and I think one should always find some or the other thing to deal with to keep their life going. But ये चीज़ थी मेरे पेरेंट्स में जो जिसने मेरे को हमेशा, इट मेड मी थिंक। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के चक्कर में लोग अपने आप को ऐसी चीजों में पुश करते हैं जो कि उनके लाइफ को मीनिंगलेस बना देती है आगे जाते में। लाइक समटाइम्स आफ्टर टेंथ, इफ यू आस्क 90% ऑफ द ग्रेजुएट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड ये सब वही बोलेंगे कि यार पता ही नहीं चला, टेंथ के बाद गए सब दोस्तों ने साइंस लिया, फिर उसके बाद सबने आईआईटी के लिए कम्पीट किया, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, सबने इंजीनियरिंग किया, आज सब स्प्रेडशीट पे बैठे हैं, तो आज सोच रहे हैं भाई लाइफ में क्या चल रहा है। बट द actual problem is at the root. The actual problem is the exposure. The actual problem is the freedom. And freedom also with a shape. Like my parents gave me freedom, but ऐसा भी freedom नहीं कि बेटा तुझे जो चाहिए वो मैं हम तुझे देंगे, या because I don't belong to a very rich family. My family is very middle class. बहुत स्ट्रगल देखे हमने, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मैं गिनवाने जाऊँ तो भाई इतने स्ट्रगल देखे। मेरे my dad is very hard working, mom is very hard working, तो काफी कुछ देखा है। बट that exposure to them, they transfer it to me कि हर्षद, whatever you are doing, do it with logic, do it with your will, and it should be your decision, because if anything goes wrong you won't blame your parents or the society for this. अगर मैं साइंस ले लेता तो प्रॉब्लली मेरा बिजनेस स्टडीज में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता। आई डोंट फील कि मतलब दैट प्लेड अ मेजर रोल, बट वो इन्वायरमेंट में मैं था कि उधर जो लोग थे वो भी थोड़ा बिजनेस बिजनेस पढ़ रहे थे। सर जो थे मेरे बहुत अच्छे, तो वो भी मतलब बिजनेस के बारे में कुछ कुछ सिखाते रहते थे, तो मतलब वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था। एंड आई वाज वेरी पैशनेट, भाई मेरे को तो कॉमर्स ही लेना है, मतलब बिजनेस मतलब कॉमर्स समझता था मैं। बट मतलब वेरी फ्यू ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स आर हेल्पिंग मी राइट नाउ। बट आई फील जब मेरे को वो चीज मिली घर से कि सी हर्षद, डू वट एवर यू वांट टू डू, सीक फॉर परमिशन, बट डू जो तुमको पसंद है, वही लास्ट डिसीजन तुम्हारा रहेगा। एंड whenever I used to say I want commerce, my dad was like कि क्यों commerce? Just explain me that, why commerce? Why do you feel? Where do you see yourself 5 years down the line? Mark the points, talk to people who have already done it, and then decide. So he taught me not, he didn't took decisions for me. Nobody took ever took decisions for me. They taught me how to take decisions. So I feel right now, people watching this video around 10th, 11th, or 9th, 10th, what they should do is they should try to like learn how to take decisions rather than looking up for someone. Like जब मैंने बोला मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, मेरे को 10 में से 8 लोगों ने बोला क्यों, मैंने बोला बीबीए, और उसमें से सबने मेरे को बोला भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, बीबीए, बीबीए कोई कोर्स होता है, ये कोई बताने वाला कोर्स है, वो अनुभव बस्सी का मैं वो देख रहा हूँ कि भाई ये क्यों बोल रहा है भाई, ये बीबीए कोई बताने वाला को। ये सारी चीजें मेरे को बहुत मतलब ये करती थी, बट वो अलग ही स्टोरी है पूरी। बट दैट वाज द थिंग, एंड दैट फ्रीडम मेड मी डू स्टफ व्हिच वाज एक्चुअली डिफिकल्ट, व्हिच वाज हार्ड, बिकॉज वो चीज से ना मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। व्हेन यू गेट दैट वर्टिकल की देख भाई तेरे डिसीजन है, you have to learn how to take decision, good decisions,
एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब ये रिस्पॉन्सिबल वाला फैक्टर आता है ना, मतलब अगर सौराज आप मुझसे पूछो वर्षक भाई ये बिजनेस है ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, अब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, मैं आपको बस बताऊँ ये पैटर्न है, इस पैटर्न में सोचो, इस पैटर्न में करो, ऐसा करो ऐसा करो, तो आपको मैं बोलूँ अब जो भी होगा वो आपके ऊपर है, ये तो बस पैटर्न है। तो यू विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल कि भाई अब मेरे ऊपर है। सो आफ्टर टेंथ आई मतलब पूरा साल भर तो ऑनलाइन ही हो गया था मेरा, 11th 12th पूरा ऑनलाइन गया, एंड टेंथ के खत्म होते होते कोविड आ गया था, तो कह सकते हैं मेरा स्कूल लाइफ जो 11th 12th में होता है वो नहीं हो पाया। बट आई फाउंड ग्रेट फ्रेंड्स एंड काफी कम लोग रहते हैं व्हेन यू आर ग्रोइंग, यू नो, मतलब सी एवरीवन इज देयर फॉर अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद यू। एवरीवन, एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स, एवरी, अगर उस एज में तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत थी, क्या मैं ऐसे मतलब देख नहीं रहा था फॉर एनी पार्टनर एट दैट मोमेंट। Same by तो same. मतलब आई फील कि उस समय वही है, मतलब इट वाज लाइक कि दीस थिंग्स आर मोर ग्रेजुअल, अभी उसमें नहीं जाते, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट इट वाज लाइक कि उस समय इट वाज कि हर हर कोई तुमसे एसोसिएट होता है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। When I in 11th standard, I made a concept Harshak says. Harshak says, I put it up on Canva. I made a infinity logo. उस पे मैंने लिखा learn, create, ये वो. एंड आई प्लान कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इसका एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा, मैं अभी से कंटेंट रिसर्च चालू करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, एंड आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ ग्रोथ क्रिएटर इन द इंडस्ट्री। उस चीज से मैंने चालू किया। देन चालू करते करते व्हाट आई मतलब 1-2 महीने मैंने पढ़ा, थोड़ा बुक बुक पढ़ा, मैं बुक पढ़ नहीं पाता हूँ बट मैंने फिर भी पढ़ा, यूट्यूब वीडियोस देखे। फिर मैं इंस्टाग्राम पे एक्चुअल में कंटेंट कंज्यूम करना चालू किया, आई कैन से अपार्ट फ्रॉम मीम्स एंड वो सारी चीजें जो आती रहती है कि भाई वो सब कुछ स्किप करके आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग एक्चुअल कंटेंट। लाइक आयुष शुक्ला वाज at that moment Ayush was around 10-11 thousand followers. He was just a content creator. Raj Samani was around 150K. तब से मैं वो लोग को फॉलो कर रहा हूँ, and I've seen their journey. So I saw how many young people are actually making videos. So am I procrastinating in some way? Like I question myself because again here I'm making my own risk. So I question myself कि क्या मैं अपने आप को procrastinate कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर करूँ ये करूँ। तो दैट क्वेश्चन हिट मी। फिर मैंने 2-3 लोगों से बात की, फ्रेंड लोगों से, यार मैं सोच रहा हूँ अपना कुछ पेज वेज चालू करूँ। इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, मेरे 100 फॉलोअर भी नहीं। तो वो चीज था। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड इज कि मैंने जब बात की अपने फ्रेंड से, देन आई हैड अ वर्ड विद माय मॉम। तो मम्मी ने ये बोला कि तुमको लग रहा है तो करो। आई स्टार्टेड विद पॉडकास्टिंग, मतलब मेरे को पॉडकास्टिंग में इंटरेस्ट था। सो आई गॉट वन गेस्ट, 100 के फॉलोअर्स थे उनके, उनको मैंने काफी अच्छे से कोड डीएम किया, ये वो गिव यू वांट आई वांट यू टू बी माय फर्स्ट एपिसोड एंड ऑल दैट। तो मतलब उनको बोला एंड इट वाज लाइक दैट वाज व्हेन इट स्टार्टेड। आई गॉट माय फर्स्ट माइक व्हिच यू हैव राइट नाउ, AU-A04 माउंट AU-A04, अमेजिंग माइक भाई, फर्स्ट टाइम है। तो मतलब आई गॉट दैट विद माय मॉम हेल्प, क्योंकि उस समय मैं उतना कुछ कमा भी नहीं रहा था। उसके पहले मैं एक्चुअली कुछ गिग्स कर रहा था इन कंटेंट राइटिंग, बिकॉज मतलब थोड़ा मेरे को पसंद था, बट उतने स्ट्रॉन्ग मिल नहीं रहे थे, 500 वाले मिल रहे थे, 400 वाले मिल रहे थे। उस समय मार्केट था भी नहीं है सबका उतना। देन आई स्टार्टेड विद दैट एंड धीरे धीरे व्हेन आई रिकॉर्डेड माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, आई शोड इट टू माय डैड कि भाई ये बनाया है मैंने। डायरेक्टली मैं गया नीचे टीवी में, वो एमआई टीवी स्टिक लगा हुआ था, यूट्यूब पे लगा दिया डायरेक्ट कि देखो पापा ये बनाया, क्योंकि माय डैड वाज सीरियस अबाउट माय 12th एज वेल। उस समय मैं 11th 12th बहुत ही क्रूशियल चल रहा था, ऑनलाइन चल रहा था, तो इवन लाइक कॉमर्स चूज किया तो अच्छे से करा। प्लस मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ले लिया था, तो मेरा मैथ बहुत गया हुआ था, बट स्टिल आई मतलब स्कोर्ड अराउंड आई थिंक 92-93 इन मैथ इन टेक। तो मैथ्स मेरा काफी गया था, दैट वाज कंसर्न अबाउट माय स्टडीज। तो मतलब इसकी वजह से मार्क्स ना नीचे जाए, बिकॉज एक्चुअली आई वाज क्रेजी फॉर कॉलेजेस दैट टाइम, 11th स्टैंडर्ड। एंड आई टोल्ड माय मॉम एंड डैड कि मेरे को आईएम क्रैक करना है, ये क्रैक करना है, वैसा कॉलेज क्रैक करना है। तो दे वर आल्सो वेरी सपोर्टिव एंड पुशिंग मी इन दैट डायरेक्शन। तो एवरीवन वाज लाइक अब कंटेंट करेगा ये तो मतलब टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा, एनर्जी जाएगा, कैसे करेगा ये वो सब। बट मैं पहला पॉडकास्ट पहले दिखा दिया पापा को, पापा खुश हो गए भाई बहुत अच्छा बनाया है वो करके। एंड उसने भी बोल दिया था भाई क्या बोला है, क्या बनाया है, लास्ट लास्ट में मैंने थोड़ा अपनी तारीफ के लिए डाल दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने देखा एंड मतलब देवर लाइक कि अब जो करना है करो, बट योर मार्क्स एंड योर टीचर्स
should not complain. And I was like, मेरा सुबह 7 बजे से लेके 7:30 से लेके 12 बजे तक स्कूल रहता है, 2 बजे से लेके 4 बजे तक ट्यूशन रहता है, 4 से 6 दूसरा ट्यूशन रहता है, 7 से 9 दूसरा ट्यूशन रहता है, तीसरा 3 ट्यूशन रहते हैं। कहाँ से कंटेंट रिकॉर्ड करूंगा, कहाँ से एडिट करूंगा, कहाँ से डालूंगा, भाई कुछ नहीं होने वाला। बट आई वाज लाइक नहीं यार, करते हैं ना, ट्राई करते हैं, क्या जा रहा है। चालू किया, धीरे धीरे पुश आउट किया, ट्यूशन के बीच में टाइम लगाया, ये जो डार्क सर्कल्स है वहीं पे देन है, अभी तक है, धीरे धीरे जाएगा। आई वॉज एट माई पीक ऑफ माई हेल्थ, द बेस्ट 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 बॉडी विच आई हैड, प्रॉपरली अच्छे से था मैं, मेरा सब मेंटेन था। आई यूज टू गो टू जिम, बीच में मैं जिम जाता था, कॉल स्कूल स्किप करके, लाइक स्कूल ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन में भाई क्या ही, किसको क्या ही पता चल रहा है, तो रख के मैं मतलब जिम करते रहता था, कभी कभी क्लास ज्वाइन कर। आई यूज टू डू जिम साइकिलिंग रनिंग, बीच में मेरा बहुत सही हो गया था। एंड विद दैट गेव मी एनर्जी, मेडिटेशन वगैरह सब करके दैट गेव मी एनर्जी टू डू कंटेंट के साथ साथ मैंने पढ़ाई किया। ट्रस्ट मी, एक भी एग्जाम में मेरे को कम मार्क्स नहीं आए, आई नेवर स्कोर्ड बैड। हमेशा मेरे को मतलब ट्यूशन टेस्ट में हमेशा मार्क्स ग्रो होते चले गए, लाइक आउट ऑफ 30 आई वाज गेटिंग 20, 21, देन 28, 29, देन एक पॉइंट तक 29, 30 सब हिट करने लगा। मैथ्स में भी आई स्ट्रगल्ड इन मैथ, बट स्टिल आई कोप अप विद इट। एंड टीचर्स वर सीइंग कि मतलब मैं बहुत ज्यादा मदद कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो दे वर वेरी सपोर्टिव एंड दे टोल्ड माय पेरेंट्स कि जो कर रहा है सही कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, इसको करने दो। बट मैं कैसे कर रहा था मेरे को पता था, मैं स्कूटर से जाता था, वो जैसे ही क्लास खत्म होता था तो वीडियो रिकॉर्ड करता था, कभी कभी क्लास ऑन के साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड किया, मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी पड़े हुए शायद। एंड उसके साथ साथ आई यूज टू गो विथ माई ये मतलब उसके बाद में शूट करता था, शूट करके लंच वंच करके ट्यूशन पे जाता। ट्यूशन से आई थिंक 3:30 तक फ्री हो जाते थे अपन, तो 3:30 तक फ्री होकर जो आधे घंटे का गैप होता था, अगल बगल ही था ट्यूशन, तो मैं एक कैफे पे चला जाता था, कैफे पे बैठ के फटाफट वीडियो एडिट कर दी थी आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर एडिट करके दूसरे ट्यूशन से निकल के पोस्ट करना 6 बजे, एंड उस समय पोस्ट करके दूसरे तीसरे ट्यूशन में वापस, फिर अगले दिन वही सेम रूटीन सेम रूटीन सेम रूटीन। एक टाइम पे इतना हिट करने लगा कि भाई मैं ऑडियो ही बनाने लगा, तो जो होता है ना वो वॉइस ओवर वाला जो रहता है कि बनाते हैं ऐसा ऐसा करके, फिर भी नहीं हो रहा था, सब नहीं हो रहा था। देन वही चीज था कि मतलब दिस वाज माय पास्ट स्टोरी, कि मतलब आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, मतलब बट द थिंग वाज दैट decision making power which I got, that logic which I was finding in every decision which I was making, plus attached with the future, कि आप कुछ भी कर रहे हो आप उसका consequences सोच के करो। So attached with my future, with logic, with support and with dedication, passion, सारी चीजें, उस समय I feel I was more passionate than I am right now, 10 times more passionate I feel, and सारी चीजें थी, and मतलब इतना ज्यादा मेहनत दिन भर दिन भर दिन भर, because you have that in you, मतलब किसी भी तरह भाई फोड़ में अभी जो 10 तरह का टेंशन होता है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, यू हैव टू पे सैलरीज, यू हैव टू be responsible for your own expenses, if you have an office you have to look at people, you have to मतलब deliver to the client and everything, तो अभी तो 10 तरह का टेंशन होता है, but that time when you were having no tension and it was like करो अब भाई करो, जो करना है बस लग जाओ अभी। तो उस समय मैंने कमाने के लिए कुछ वीडियो एडिटिंग गिग्स लिए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के, 2-3 इन्फ्लुएंसर्स के मैंने वीडियो एडिटिंग किए, कंटेंट राइटिंग की, तो अप्रोक्सीमेटली 8-9 हज़ार रुपये कमाने लगा। एंड फ्रॉम देयर 8-9 हज़ार भी नहीं यार, 6,000 रुपये कमा रहा था मैं। एंड वो 6,000 में मैंने एक बहुत ही साउंड फाइनेंशियल डिसीजन लिया, मैंने 4,500 रुपये की EMI पे iPhone 13 ले लिया। एंड ये साउंड फाइनल डिसीजन से जो मैंने पहला, बिकॉज मेरे को क्या था ना, आई एम एडिक्टेड टू क्वालिटी, मैं कम बनाऊंगा बट क्वालिटी बनाऊंगा, पता नहीं क्यों मेरे में ही क्यों है, मतलब आई डोंट लाइक वांट टू आर्ग्यू विद एनीवन कि क्या क्वांटिटी होता है क्या क्वालिटी होता है, बट मेरे में था कि आई एम एडिक्टेड विद परफेक्शन एंड क्वालिटी, ये सारी चीजें कहीं कहीं पे ये तुम्हारे लिए एक ड्रॉबैक की तरह भी काम करती है, बट आई वॉज एडिक्टेड टू क्वालिटी, तो आई वॉज लाइक भाई मेरे पास ये सैमसंग है, इससे कुछ नहीं हो रहा, आई वॉन्ट दैट iPhone 13। मैं गया iPhone 13 लिया EMI पे अपने डैड के उससे करके कि भाई पापा का हर महीने दूंगा, देता ही हूँ, मतलब अब तो फोन चेंज कर दिया, वो हटा दिया अब तो iPhone 13 लिया, एंड द फर्स्ट वीडियो विच आई मेड विद iPhone 13 went 1 million plus. That was the first video IKEA के ऊपर जो मैंने बनाया,
and that is right now I think at 2 million, 3 million or 5 million, मेरे को आइडिया नहीं, but that was the first video which it like crazy, and उसके बाद जो quality content का जो मैं डालते चला गया quantity में डालते चला गया, because iPhone made things easier, बहुत ज़्यादा easy हो गई चीज़ें, and आफ्टर दैट यार अभी बैठा हूँ यार, ग्रो कर रहे हैं अभी, बाकी जर्नी तो वही बात करते करते पता चली जाएगी, दैट वाज द थिंग, ये चीज था। दिस इज माय सम अप, मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस था, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली साउंड डिसीजन लिए मैंने, बट ठीक है जो भी हुआ इट वाज मेंट टू बी, दैट्स व्हाट आई फील, कि समटाइम्स रॉन्ग डिसीजंस आर आल्सो मेंट टू बी, राइट डिसीजंस आर आल्सो लाइक meant to be, because everything teaches you something, and that is super important. If things are going wrong in your life, not being a motivational speaker here, but if things are going wrong in your life, you are definitely going in the right direction, because what happens is when things go wrong, you see things in a different manner, मतलब आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि मतलब क्या चीजें एक्चुअल में किन चीजों का फंडामेंटल वीक था, लाइक व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग इन माय कंपनी, आई केम टू नो कि हमारा क्या क्या पार्ट वीक है, क्या क्या पार्ट हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कसम से भाई, अगर नहीं होता वो चीज़, नहीं होती वो गलत चीज़ें नहीं होती, या लॉसेस नहीं होते या कुछ नहीं होता, तो आई मेरा कंपनी ग्रो ही नहीं करेगा। एंड काफ़ी चीज़ों से अगर आई एम सिटिंग विथ यू एंड टॉकिंग अबाउट ऑल दिस टुडे इज बिकॉज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। So things should go wrong, make good decisions, take your own responsibility, think wisely. That's to sum up my journey, which I feel over the time. Great point, Sarshak. Totally, relate to your journey ki how you started with gigs. Even I, like 2-3 years back, started with learning video editing, and मेरी भी like वो गिग वाली जर्नी वीडियो एडिटिंग से ही स्टार्ट हुई। कंटेंट राइटिंग तो अभी भी नहीं कर पाता अच्छे से, बट या दैट वीडियो एडिटिंग थिंग आई कैन टोटली रिलेट टू। उसके अलावा the last 15-20 minutes have been quite insightful, like everybody listening to the podcast would agree on this। बहुत सारे पॉइंट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, like to all the 15, 16, 17 year olds, and the podcast further will also be very very knowledgeable and insightful for the people. Moving on to the next question, what is your take on consistency and making it big in the content game? Like, should emerging creators focus on quantity or maintain quality to attract new audiences? Like, you touched upon quantity and quality just before. See, what I feel is how Instagram works is that you have to create good content now. लाइक इंस्टाग्राम पे आप देखो ऐसी चीजें ही चलती है जो कि या फिर बहुत ज्यादा क्रिंज है, बहुत ज्यादा मीनिंगलेस है, या बहुत ज्यादा मीनिंग है उसमें और बहुत ज्यादा अच्छा है। जेनरिक चीजें अब नहीं चल रही है प्लेटफॉर्म पे राइट नाउ। लाइक पहले क्या हो रहा था, एक बार एक क्रिएटर पुश हो गया, जैसे मैं एक बार पुश हो गया बीच में, तो मेरी सारी वीडियोज ही पुश होती, बट अब मेरे को पता है अगर मैंने किसी वीडियो में एफर्ट डाला है और अच्छे से बहुत अच्छे से बनाया है, तो वो और ज्यादा पुश होगी ऑटोमेटिकली। और अगर मैंने किसी वीडियो को बस ऐसे ही बना दिया डालने के लिए, तो आई डोंट नो हाउ उस पे नहीं आता रीच। व्हाट आई हैव सीन इज दैट, व्हाट आई हैव लर्नड इज फ्रॉम दिस इज दैट नाउ हाउ इंस्टाग्राम इज वर्किंग इज, और हाउ एनीथिंग वर्क्स, ठीक है, मैं कुछ भी इसमें फॉर्मूला बता ही नहीं रहा, कुछ फॉर्मूला नहीं, दिस इज जस्ट एन इक्वेशन, कोई एल्गोरिदम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल एकदम गुजराती फॉर्म में समझाता हूँ। मैं गुजराती नहीं हूँ, बट मैं एकदम बहुत धंधे वाले भाषा में समझाता हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक क्या है, करेंगे आप बताओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, धंधा है, हाँ बिल्कुल, बिजनेस है, और कुछ नहीं है। दे वांट यूजर्स, बट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के पास खुद का कुछ है यूजर्स को रिटेन करने के लिए? नहीं है। दे हैव कंटेंट क्रिएटर्स लाइक यू एंड मी, सिंपल सी बात है। तो वो किसको प्रमोट करेंगे? अगर स्वरांश का एक रील उनके यूजर्स को रिटेन कर पा रहे, तो बोलेंगे भाई स्वरांश तो हमें बिजनेस दे रहा है, स्वरांश को और आगे पुश करो, स्वरांश के 1 मिलियन कराओ, फॉलोअर्स भी कराओ, कुछ भी करो। सिमिलरली मेरे साथ हुआ कि जब मैंने ऐसा कंटेंट बनाना चालू किया, वो भी क्या है, आफ्टर सम टाइम टू पुश इट। पहले तो क्या होता है, एक फेज होता है, पहले समझो इंस्टाग्राम के हेडक्वार्टर में एक बंदा बैठा हुआ है, ऐसे इमेजिन कर लो कि एक बंदा बैठा हुआ देख रहा है कि क्या कर रहा है, देख रहा है अच्छा यार एक स्वरांश करके बंदा है, वो हर डेली रील डाल रहा है, क्या है उसकी रील में, एक बार देखते हैं, उसको थोड़ा सा पुश करता है, देखता है अच्छा चलो जिसको न्यू यूजर्स को, कभी देखोगे तुम लोग अचानक से कोई वीडियो बीच में
10,000 15,000 अचानक से, मतलब कोई सेंस ही नहीं वो वीडियो का आ रहा। 800 900 व्यूज आ रहे, 10 15 हजार। हो जाता है, ठीक या है, एग्जैक्टली। 15,000 चला गया। अब वो 10 15, अच्छा यार, स्वराज की जो वीडियो मैंने पुश करी थी 10 15 हजार वाली, यार ये 10 15 हजार व्यूज पे तो यार 2,000 लाइक थे। क्या एंगेजमेंट रेशियो है। चलो स्वराज को और 2 3 वीडियोस पुश करते हैं। दिस इज हाउ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वर्क्स। देयर इज नो अदर एल्गोरिथम। काफी सारे बड़े क्रिएटर हैं जो कि हैशटैग्स भी यूज करते Hmm. हैं। उनके बारे में देखो जाके, उनके क्या बोलते हैं, कैप्शन में देखो जाके, वो लोग हैशटैग्स भी नहीं यूज कर रहे। यू हैव टू यूज हैशटैग, देयर नो डाउट इन दैट, इट हेल्प्स यू इन रैंकिंग एंड एवरीथिंग। इट हेल्प्स यू इन पीपल, बिकॉज इंस्टाग्राम को भी पता चलता है ना कि कौन से हैशटैग्स को तुम्हारा ऑडियंस लाइक कर रहा है। या जनरल लोग, जैसे अभी मेरा बीच में बिजनेस स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांड स्टोरी टेलिंग में रैंक कर रही थी सारी वीडियोस, तो मतलब जो भी लोग उन हैशटैग्स को लाइक कर रहे थे, मतलब उन तरीके के हैशटैग्स को लाइक कर रहे थे, उसको वो लोग पुश कर रहे थे, तो मेरे वीडियोस भी उसमें पुश हुए। अनदर थिंग इज, दिस इज व्हाट इंस्टाग्राम सीज। एंड अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ऑडियंस को रिटेन करने के लिए क्या चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। It should be your approach. But at the very same time, quantity should not hamper the quality. Because अगर कुछ टाइम के बाद लोगों को दिखेगा कि यार अब तो नहीं मजा आ रहा है स्वराज के वीडियो में, तो चाहे आप 100 वीडियो बनाओ, 500 बनाओ या एक बनाओ, कुछ भी नहीं चलेगा। Hmm. Quantity should not hamper the quality. Unless and until the quantity is not hampering the quality, you will not have any issue. You see successful creators का कभी भी quantity have not hampered the quality at any given point of time. That is why they are successful today. What I feel is, for the emerging creators right now, like, I'm not a very big content creator, but I love study things. मतलब मेरे को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। मैंने किसका कोर्स नहीं किया है भाई डिजिटल मार्केटिंग में? मैंने सबका कोर्स किया है। मैं भी नाम नहीं ले सकता इससे, बिकॉज यू नो मैंने सबका किया है। डिजिटल नाम से मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सबका किया है मैंने कोर्स। और मतलब एक है 1.2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर, जैसे मैं इंस्टाग्राम सिखाने से, उनका भी मैंने कोर्स लिया, मास्टर भी। सब किया है मैंने, एंड सब में कुछ भी नहीं सिखाया, गलती से भी मत लेना क्या है। उसमें बस तुम्हें रील बनाना सिखाया है, कुछ भी सिखाया नहीं। अगर तुम एकदम ऐसे हो कि तुम्हें मतलब हो सकता है मेरे केस में अलग हो, मेरे को आता था रील बनाना। इट वाज लाइक मेरे को पता था कि कैसे करनी है। बट व्हाट आई वांट यू टू लर्न rather than that is learn your subject, learn your niche, rather than investing in all this, rather than investing कि भाई आप ये कोर्स ले लो and you go viral on reels and see 100 testimonials. What you should do is you should learn on your subject. Like, I have seen a couple of my friends who have grown like crazy. Let's take an example of Janvi, if you know Janvi Singh. Hmm. Janvi is my very good friend. मतलब कब से, मतलब when she was at 4,000 followers कुछ, तब I was at 1,000. I collaborated with her and काफी अच्छा हम लोग का बात भी इतना हुआ। She is at over 500K already. What I have seen is, she did put her money and invested a bit, I think, probably into things like courses, वगैरह. But what I have learned from her is that she has invested a lot of time and energy into learning her subject, that is Bhagavad Gita. Hmm. A lot of time. She has taken up courses. She has taken up like probably, मतलब अपने कॉलेज का भी कोर्स है उसका, वैसे ही कुछ है। एंड उसने जितना भी कंटेंट भी कंज्यूम किया या कुछ भी किया, शी हैज डन इन हर सब्जेक्ट। उसका सब्जेक्ट इतना अच्छा मास्टर हो गया दैट शी ग्रू। एंड मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में कौन सा कोर्स नहीं लिया था यार, कौन सा कोर्स मैंने नहीं लिया। आई टुक एवरी कोर्स 500 700 रुपए के, 1,000 रुपए के आते हैं। बट जब मैंने एक्चुअल में खुद से स्टडी चालू करी, तो मैंने देखा कि कोई ये चीज सिखा ही नहीं रहा है कि आपका नीश कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट। लाइक सक्सेसफुल क्रिएटर्स, लाइक जानवी का एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूँ, तो इट्स लाइक उन्होंने मतलब जानवी ने इतने अच्छे से भगवत गीता को स्टडी किया, उससे कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया, एंड उसने और ज्यादा वेदास एंड काफी सारी चीजों के ऊपर, मतलब शी यूज्ड टू राइट नोट्स, स्क्रिप्ट्स, एंड इतना ज्यादा बैच्ड वे में, इतना ज्यादा प्रोफेशनल वे में शी मेड श्योर कि मतलब उसका क्वालिटी भी उतना ही अच्छा रहे एंड क्वांटिटी भी उतना अच्छा रहे।
She took a break in between. एकदम जब she was making self growth motivation एकदम starting में, she took a small break and then she started with Bhagavad Gita. And today, from her stories to her reels to all the seminars or webinars she is attending, she is master of her subject. There was no algorithm which helped her. That was her own hard work, her study, and her dedication towards her niche, I can say. If you are making on finance, you should just go in and out in finance. बुक पढ़ो, वीडियोस देखो, कंटेंट क्रिएटर्स को देखो, सबको देखो व्हाट दे आर मेकिंग, हाउ यू कैन बी द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट इन योर ओन वे. शी क्रैक्ड इट कि मैं भगवत गीता बहुत ही सिंपल मैनर में सिखा सकती हूँ. आई कैन make youth understand that. I can make people, read Bhagavad Gita, learn from it, take advantage of it. And she mastered that. And you name me one Bhagavad Gita creator who is better than her in her niche at the moment. And the thing is, what happens is that that's how you create your differentiation factor. As a content creator, what you should look for is how you can create a different differentiation factor. And that can only happen through subject study. बिजनेस पे बना रहे हो, अच्छा कंटेंट कहाँ से निकलेगा? थ्रू स्टडी, थ्रू आर्टिकल्स, बुक, कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड, फॉलोइंग अ पैटर्न. देयर इज नो अदर वे. आप रील बनाना सीख लोगे, कंटेंट बनाना कैसे सीखोगे? All the courses available on internet, you should definitely buy it. If you don't know how to create reels, but if you don't know how to create content, काफी लोग हैं जिनके पास भाई भारी भारी कैमरा है, माइक है, ये वो है, बट कंटेंट नहीं बना पा रहे. दैट इज बिकॉज उनको अपने स्टडी और अपने नीश का उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग या उतना अच्छा ग्रिप नहीं है. अगर आपका आपके नीश के ऊपर ग्रिप अच्छा है, लेट्स से Soransh, you are making on like you have your startup with Vidyavox, ठीक है, it is doing 10 different things in Web3 and all that. आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी that you are credible in Web3. And how will that happen? Through creating content. If you have your business in Web3, you should create content on Web3 so that people find you credible. That this guy knows well about Web3. So all the emerging content creators who are watching this video or like want to grow on Instagram and all that, अभी यार बहुत ही ज़्यादा ब्लडबाथ चल रहा है Instagram पर. टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, बहुत ही सारे क्रिएटर्स कुछ ना कुछ कंप्लेन ही लेके आते हैं. जब भी मैं बात भी करता हूँ कुछ फ्रेंड्स वगैरह, दे आर ऑलवेज लाइक यार पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, रीच ही नहीं आ रही, 10-15 दिन से डाउन है, किसी का 1 महीने से डाउन है, मेरा डाउन है. बट द थिंग इज, मेरा क्यों डाउन है मेरे को पता है, मैं कंटेंट ही नहीं बना. तो अभी बनाना चालू करूंगा ऑब्वियसली, बट मैं नहीं बना रहा इसलिए डाउन है. बट जब मैं बनाने लगूंगा, प्रॉपर फॉर्मेट बनाने लगूंगा, जो सब्जेक्ट को मैं स्टडी कर रहा हूँ इतने 1-2 महीने से, that is branding, that is marketing psychology, that is working with brands and all, a lot of things, I'll put that up. मैं जिसमें उस समय I was really well in storytelling. I had that power. मेरे वीडियो पे जितने भी व्यूज 1 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, जितने भी गए, बहुत सारे वीडियोस मिलियन क्रॉस किए. That was because all those videos were 1 minute 30 seconds. 1 सेकंड उससे कम नहीं था वीडियो. कोई भी वीडियो आप बोल दो भाई 30 सेकंड का वीडियो तो वायरल नहीं. एंड लाइक देखो, 5 लाख लाइक, 6 लाख लाइक, 7 लाख लाइक, ऐसे ऐसे लाइक से वीडियो. दैट वाज ओनली बिकॉज आई मास्टर्ड स्टोरी टेलिंग. I found that as my subject and I found information as my subject. So storytelling with information was something in which I was able to create differentiation, in which I got appreciated by very big people of this industry. Very big, like 2 million, 1 million, 3 million followers. And a couple of names अगर मैं बोल दूंगा तो भाई ऐसा कोई होगा ही नहीं जो नहीं जानता होगा. But the thing is, they appreciated me, people mentioned me, I collaborated with a lot of people, I had chat with a lot of big creators, and they told only one thing, bro, love your storytelling, love your information. So create something कि भाई ये बंदा ना यार, ये जो बना रहा है ना, ये कोई बना ही नहीं रहा है, ये जिस तरीके से बना रहा है ये कोई कर ही नहीं रहा है, या कुछ एक डिफरेंशिएशन फैक्टर होना चाहिए. Once you create that differentiation factor, study your subject, study your niche, and learn how to create content. People with just black and white filters and very low quality equipment, I can say a lot of people that don't have good equipment, वो phone से record कर रहे हैं,
खराब से खराब माइक होंगे बस ऑन यूट्यूब एज वेल, बट दे आर डूइंग ग्रेट। कोई इशू नहीं भाई, ओनली बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देयर कंटेंट। लेट्स टेक अ वेरी आइकॉनिक एग्जांपल, भुवन बाम। ठीक है, टिल डेट बंदे ने सिर्फ और सिर्फ आईफोन से रिकॉर्ड किया था, या स्टार्टिंग में तो आईफोन मिली थी। टिल डेट ही इज यूजिंग हिज फोन, नॉट इवन अ ट्राइपॉड। मेरे को पता नहीं, शायद ट्राइपॉड यूज करता है हाँ, नहीं। हाथ से बनाता है वो सिर्फ। कोई लोकेशन का कुछ नहीं चेंज भाई, कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही। ठीक है, कुछ भी नहीं। सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, पागल हो गए लोग, फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई, पैटर्न वही, सब वही। ओनली थिंग विच इम्प्रूव्ड वाज कंटेंट। ही मेड क्रेजी लेवल कंटेंट, ही डिड क्रेजी स्टफ ऑन यूट्यूब। उसने जो बनाया, लोगों को उसने हुक किया, एंड ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली। हिज कंटेंट। आप बताओ उनके कंटेंट में कोई सेटअप है? जितना सेटअप मेरे पास है उनका, उतना सेटअप आई डोंट थिंक सो ही हैज एवर यूज्ड ऑन हिज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वीडियो। स्टिल इज मोर सक्सेसफुल देन, कोई क्वेश्चन ही नहीं है दैट इज भाई। वो तो आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट आप सोचो ना, पीपल विद ग्रेट कैमरास, ग्रेट ये वो, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इससे क्या सीखने मिलता है? इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग हाउ टू क्रिएट कंटेंट। उन्होंने कॉमेडी के ऊपर चालू किया, ही लर्न कि वो कैरेक्टर वाला कॉमेडी किस तरीके से मैं बेटर तरीके से कर सकता हूँ, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो ये चीज हो। उन्होंने अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम किया। दैट वाज हिज कंटेंट, कैरेक्टर्स, ही शार्पेंड दोस कैरेक्टर्स, ही क्रिएटेड न्यू कैरेक्टर्स, he created great scripts and a lot of stuff, and that made it. So my crux of the whole thing, which the question which you have asked, is that focus on quality. Don't let quantity hamper your quality. Quantity is important, but if it is hampering your quality, then in the long run, it's not good for you. Study your niche, study your subject. If you'll do well in your subject, then definitely you will like scale up like crazy. आपको अपने सब्जेक्ट का वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कल को यू कैन मोनेटाइज अपॉन दैट। कल को कोई आपको बोल सके, अगर मैं आज बिजनेस के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, दे शुड बी लाइक यार, हर्षद को बुलाते हैं, वो बिजनेस के ऊपर अच्छा बोल। टुडे पीपल कॉल अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, मतलब ऐसे ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड दैट इज ओनली बिकॉज देयर कंटेंट व्हिच दे हैव एक्सेल्ड इन। प्लस ऑल, मतलब ये सारी चीजों को लेके यू शुड स्टडी वेल, कि मतलब भाई मार्केट में क्या चल रहा है, जो लोग चल रहे हैं वो लोग क्यों चल रहे हैं, and don't get carried away by things like going viral and everything. There's no such thing as, no, there's no right time as going viral. There are people who have created 500, 600 videos and then have touched like 1 million followers in like no time. And there are people who are at like मेरे जैसे लोग 200 वीडियो बना के भाई 100 के क्रॉस कर गए। And there are people जो, जब मैं 100 के क्रॉस किया था, मेरे साथ वाले दोस्त जो मेरे साथ 300-400 फॉलोअर, they have created around 400, 500 videos, but उनका नहीं हो रहा था क्रॉस। That is not because of quality or ये सब. That is because I was lucky enough, and I can say with proper like, मैं ये चीज कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूँ कि मैंने हर कंटेंट के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करी फ्रॉम द फर्स्ट डे। If you see my first video and if you see my 100th video, there's a major difference in quality. Major, सिर्फ 100 वीडियो के अंदर, एंड नेक्स्ट 100 वीडियोस में उससे भी ज्यादा मेजर डिफरेंस है। बट इफ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल, उनके 300 वीडियो सेम ही क्वालिटी में, पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। दैट इज बिकॉज यू हैव टू बी एक्टिव एज वेल। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड यू हैव टू बी, मतलब थोड़ा आपको बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। मैंने 50 वीडियो डाली बिजनेस के ऊपर, पूरी एफर्ट डाल के, पूरा स्क्रिप्टिंग करके। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, जैसे अगर 50 वीडियो बनाई सौराज आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, सब करके, एंड यू गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट कि भाई ये अब लग रहा है कि कुछ बना है, ठीक है, बट आपको 50 वीडियो के बाद पता चला कि नहीं यार, रिस्पॉन्स किया, फिर आपने कुछ और ट्राई किया, उसमें कुछ और बेटर किया। सी, मैं ना एक खुद से एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स बनाया। देयर आर दीज, दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच आई फॉलो। If you are a content creator, there is a formula. There are three parts of the formula. That is that you are creating what you like, you are creating what your audience likes, and you are creating what you both like. अब इसमें क्या होता है? If you are creating what you like, you won't grow. If you are creating what your audience likes, then you won't scale up. Because अगर आप ही को नहीं पसंद है आपका काम, तो आप कब तक बना लोगे?
बट इफ यू आर क्रिएटिंग दैट आपको भी मजा आ रहा है एंड ऑडियंस को भी मजा आ रहा है, वहां पे आप हिट कर जाओ, नो डाउट आप हिट कर जाओ। आई वॉज क्रिएटिंग सेल्फ ग्रोथ मोटिवेशन, बाद में मेरे को पता चला कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, बिकॉज मैंने लाइफ में खुद कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं। कंफर्ट जोन में बैठा हुआ, आई एम टेलिंग पीपल भाई हार्ड वर्क करो, ये करो वो करो। आई एम नॉट इवन लिविंग ऑन माई ओन मनी, देन हाउ कैन आई टीच पीपल अबाउट सेल्फ ग्रोथ एंड मोटिवेशन? बट आई वाज लाइकिंग इट, आई क्रिएटेड इट, बट ऑडियंस डिडंट लाइक इट, बोल ये क्या ही बोल रहा है भाई, ये क्यों बोल रहा है, क्या देखा है इसने लाइफ? आई हैव अनलर्नड माय ओन बिलीफ्स ओवर टाइम, and that's why I feel that majority of the people who are creating just motivation content, self growth content should have some background, should have some experience attached to it. Like I have seen Raj Shamani sir's journey, I respect him a lot. Till I think 400, 500K followers, he was just focusing at business and finance news. When he started getting successful, he went to so many, he did so many speeches and he got so much exposure. Then he actually started with a little bit of motivation and self growth and those things. If you scroll down, you'll only see three financial news, three business news. Reliance did something crazy. वो सिर्फ यही दिखेगा आपको. But as you see, as he grew up, मतलब जब उन्होंने खुद सीखा, एक्सपीरियंस किया, then he told कि भाई अब मैं लोगों को एक्चुअली में कुछ सिखा भी सकता हूँ, because I am at a good place now. So that was not in me at that time. So I backed off from that content. Then I started creating self-growth content. लोगों को मजा आ रहा. They were liking it, but I was not liking it. Like मजा नहीं आ रहा. चल रहा था, थोड़ा मोड़ा चल रहा था, मजा नहीं आ रहा. Then I started with business finance, जो कि हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा. एंड मेरे को स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, वो मैंने डाला, ऑडियंस को बताया, मेरे को बताया भाई वीडियो धड़ 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन 4 लाख 5 लाख चल। So you should see what you like, what the audience likes. It should merge somewhere. It should unite somewhere. Quality, but क्वांटिटी की वजह से क्वालिटी नहीं खराब होनी चाहिए. कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है, बट कंसिस्टेंट रहने से ज्यादा एक पैटर्न में रहना इंपॉर्टेंट है. यू शुड नॉट जस्ट गो एंड लाइक पोस्ट लाइक एनी टाइम, लाइक भाई संडे बनाते वीडियो डालते, अरे 2 हफ्ते हो गया 3 वीडियो डालते, वैसे भी फॉलो अ पैटर्न, बिकॉज इंस्टाग्राम ऑल्सो सीज अ पैटर्न एंड देन यू शुड वर्क अकॉर्डिंगली. वो चीज है, दिस इज द क्रक्स. या Super points, Harshak. Like you have added layers to, you know, layers for all the content emerging content creators की कैसे करना है, like from 0 to 100 कैसे जाना है, the steps that you have shared and the formula, like ये जो 2-3 points end में formula की form में you have shared, they these points are fabulous. I think every, like I literally I can bet कि ये वाला हिस्सा podcast का most replayed होगा YouTube पे, because द पॉइंट्स आर फैबुलस. लाइक मेरे को खुद ये वाला पार्ट मैं बार बार रिपीट पे देखने वाला हूँ अपनी कंटेंट टाइमलाइन को थोड़ा फिक्स करने के लिए. और बिकॉज आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू आर लाइक माई बिग ब्रदर. जब बॉम्बे में मिले थे तो लाइक वी वर डिस्कसिंग दिस ओनली कि यार क्या है एल्गोरिथम, कैसे इसको बीट करना है, मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, कितनी रील्स के बाद बढ़ेंगे, लिटरली फैबुलस पॉइंट्स. तो नाउ लेट्स टेक अ बिट टर्न. नाउ यू गेट इनवाइटेड टू इवेंट्स, राइट? एंड आई एम श्योर जोश टॉक, टेड, सबसे इनवाइट्स आते होंगे. तो लाइक हाउ इज हर्षक, हु इज बिहाइंड द कैमरा, अपने ऑफिस में बैठ के रील्स बना रहा है, इज डिफरेंट फ्रॉम हर्षक हु स्पीक्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड स्टेजेस? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोश टॉक वगैरह तो अभी तक नहीं आया, बट टेड एंड टेडेक्स तो यार मिल जाता है. टेडेक्स आया है बहुत बार, टेडेक्स आया है, टेड नहीं आया. मुझे भी टेडेक्स आया है, टेडेक्स आया है बहुत बार. एंड बहुत बार मेरे को इतने सारे मतलब कॉलेजेस से इनवाइट आए हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस से इनवाइट आए हैं, दिल्ली, बैंगलोर, अ लॉट ऑफ कॉलेजेस. बट द थिंग इज मैंने बहुत ही कम गया हूँ, मैं बहुत ही कम. लाइक 1-2 जगह पे जहाँ डिजिटी वाज अ स्पॉन्सर, एक ही जगह पे, 1 या 2 जगह पे आई वेंट एंड आई क्रिएटेड अ रील आल्सो उधर ही. वो इट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में कभी. बट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ इनविटेशन, बहुत ज्यादा भाई. हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे ऐसे कॉलेज का मेल आता है कि भाई टेम्पटिंग लगता है यार कि चलते यार, क्या प्रॉब्लम है यार, इतना क्या है, इतना क्या वैल्यू है. बट द थिंग इज आई स्टिल फील दैट यार मैं उधर खड़े होके, आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा पसंद है.
मेरे को बात करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरे को स्टोरी टेलिंग से बहुत ज्यादा लगाव है। मैं बात करने में बहुत, ये पॉडकास्ट भी बहुत लंबा सुंदर है। बात करना मेरे को बहुत मजा आता है, और मेरे को आई एम इन अ कॉन्वर्सेशन, एंड वेन एवर आई वेंट टू लाइक एक दो कॉलेजेस पे जहाँ गया था, आई वेंट टू पुणे ऑल्सो इन वन एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज। इट वाज अ क्रिएटर, बहुत सारे क्रिएटर्स को, मतलब बहुत सारे नहीं, चार पांच क्रिएटर्स को साथ में बुलाया था, तब मैं चला गया कि चलो भाई साथ में चल रहे तो चल देते हैं। बट द थिंग इज, उधर भी जाके आई नेवर टॉक्ड विद पीपल अबाउट कि आप लाइफ में क्या करें, बिकॉज मैं अभी खुद डेली सीख रहा हूँ यार। मैं अगर जाके उनको बोल दूं ऐसा ऐसा करना चाहिए, आई नो इट विल बी ट्रू, भाई काफी लॉजिक बनाएगा, ये बनाएगा, बट स्टिल वाई, मतलब क्यों बोल रहा है? इट्स लाइक मेरे अभी फॉलोअर्स है, ठीक है, बिजनेस रन कर रहा हूँ, बड़ी टीम है, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ डेली, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ अप एंड डाउन, मतलब जिनका नेटवर्क प्रॉब्लली मिलियंस एंड बिलियंस में, सेलिब्रिटीज के साथ कांटेक्ट है, काफी सारी चीजें। बट द थिंग इज, what I feel at some point is that I'm still not credible to stand in some very big college with my poster and hoarding ki welcome Harshak Sinha, let's talk about life, आप कुछ सक्सेस ले दो। बिकॉज आई फील दैट मैंने जो एम किया है वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को उतना टाइम नहीं है। बट या, आई कैन से जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, इन सारी चीजें कर रहा हूँ, इट विल हैपन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, प्रोबेबली नॉट इवन कपल ऑफ इयर्स, इट विल हैपन सून, फिंगर्स क्रॉस्ड ऑब्वियसली। बट आई फील तब तक मैं बहुत कुछ सीखूंगा। एक महीने पहले द हर्षक आई वॉज, अभी मैं वो नहीं हूँ। उसके एक महीने पहले द आइडियोलॉजी विच आई हैड, अभी मैं वो नहीं हूँ। उसके एक महीने पहले द आइडियोलॉजी विच आई हैड, अभी नहीं हूँ। तो मैं कैसे चले जाऊँ कॉलेज में? तो मतलब स्वरांश, उस समय मैंने आपको जब ये बात बोली थी तो आप भी थोड़ा मतलब बोल रहे थे कि यार कैसे ऐसे है? मतलब बट द थिंग इज, मेरे को काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है भाई, चले जा। बट द थिंग इज, आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी तक उस पॉइंट पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं लोगों को सिखा सकूं। I still feel I'm learning daily from some or the other person who is not probably at my stage, who is probably, I'm learning a lot from you, I'm learning a lot from other people which I meet, but आपसे मिला तो मैं काफी कुछ सीखा यार भाई तेरे से। Obviously काफी सारे लोगों को मिलता हूँ जिनके फॉलोअर्स कम है, भले कम है, बट उनसे मैं कंटेंट सीखता हूँ। You should never see today what the problem everyone is having, and there's nothing wrong in that problem. Okay? जैसे आप भी आज अगर मेरे से पूछ रहे हो कि हर्षक भाई, मतलब मैं अलग गलत वे में नहीं बोल रहा, कि मतलब अगर आप भी मेरे से पूछ रहे हो कि ऐसे भाई कम ऑन माई पॉडकास्ट, आप आओ, आप थोड़ा ये बताओ, या कॉलेज में आपको इनवाइट आते हैं यार, आप तो सक्सेसफुल हो कंपनी, इट इज बिकॉज आई हैव अ कंपनी एंड आई हैव गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स, बट दीज थिंग्स आर स्टिल जस्ट नंबर्स एंड जस्ट मेट्रिक्स। काफी चीजें जस्टिफाई नहीं होती, कुछ चीजों को टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। To actually teach people and learn from people, you need experiences. I feel there's a lot more I have to experience in these coming years. Right? मैंने काफी जगह पे काफी बड़ी बड़ी गलतियां करी, ऐसी ऐसी गलतियां which have landed me in a very difficult situation. I've coped with it, मतलब वो फाइट वाइट करके आदमी अपना निकल जाता है उसपे। We fight back, we go back and forth. I have an amazing people whom I work with, my partners, co-founders, team members, everyone. I have amazing people. बट द थिंग इज, मैं हर दिन उनसे कुछ सीख रहा हूँ, वो मेरे से कुछ सीख रहे हैं। मैं 10 लोग से मिल रहा हूँ, 10 बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ जो कि बोल रहे हैं भाई आई हैव नेटवर्थ ऑफ 500 CR, कोई बोल रहा है 5000 CR, दिखा रहा है मेरे को भाई दिस इज द स्कोप भी है, ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। हर दिन मैं नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, सब चीजें हो रही है। तो अगर मैं अभी सिखाने को तड़ जाऊँ, देन आई सम हाउ लिमिट माई सेल्फ। दैट एक क्या होता है ना, एक होता है ग्रेटिफिकेशन, एक होता है कि भाई आप ना अपने आप को कहीं थोड़ा एक लेवल पे मान लेते हो कि भाई मैं तो सक्सेसफुल हूँ, वो चीज आपको गिरा देती है। दैट डेमोलिशेस यू बैडली, और दैट पुट्स अ कैप ऑन यू। और क्या है ना, मैं एक सिंपल एक पैटर्न इसमें भी है कि दैट द वर्ल्ड इज ग्रोइंग, इनोवेटिंग, इंडस्ट्री इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे। द डे यू फील यू आर सक्सेसफुल, यू विल गेट स्टक, वर्ल्ड विल पास यू। जब वो तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे हो जाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर आज मैं इतने ही लेवल पे आके भाई जस्ट ओन अ कार, आई हैव अ ऑफिस, सब चीज सेल्फ फंड है मेरा, एक पैसा मैंने नहीं लिया है, सब बूटस्ट्रैप्ड है, हजार चीजें मैं सिखा सकता हूँ, देयर इज नो डाउट इन दैट। एवरी आई हैव नॉट टेकन
a single penny as investment or as help till date. Not even a single penny. And right now, if we valuate our company, we are in 8 or 9 figures. I can easily say we are in 9 figures. There is no doubt in that. But the thing is, that 9 figures is not getting associated with anything else. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई we are not facing challenges. That is just valuation. Or valuation, you know how it works. It is not always a true picture of the company. Exactly. So what I feel is there are a lot of things which I've learned I can teach. चाहे वो खुद से बिजनेस चालू करना हो, चाहे वो खुद का एक लाइफस्टाइल क्रिएट करना हो, फ्रॉम कैरिंग योरसेल्फ। यू आर सीन मैं थोड़ा शौक टाइप का इंसान है, मेरे को थोड़ा हाई फाई पसंद है, मैं हूँ शौक टाइप का, आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक, बट मेरे को शौक है। आई एम लाइक दैट किड हु इज इन लव विद गैजेट्स और कार्स। ठीक है, ये दो चीज से मेरे को बहुत प्यार है, मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ, तो वो एक चीज है। सो आई एम सस्टेनिंग अ लाइफस्टाइल, आई एम वर्किंग हार्ड, आई हैव माय बिजनेस, आई हैव अ बिग टीम, सारी चीजें। बट स्टिल आई फील when I'm sitting here in the office in my complex, यही फ्लोर पे 100 ऑफिस है, और पूरे बिल्डिंग में कुछ नहीं तो कम से कम 1000 ऑफिस है। ये सारे 1000 ऑफिस यही सेम चीज करके बैठे, तो जो भी मैं कुछ सिखाने वाला कुछ अलग नहीं होने वाला, बस एक पर्सपेक्टिव होने वाला है। एंड स्टिल आई फील फॉर द एज आई कैरी, आई एम जस्ट 19, थोड़ा उससे भी मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आई एम जस्ट 19, बट द थिंग इज आई स्टिल फील थोड़ा और बिजनेस ग्रो करे, आई हिट अ बिगर बेंचमार्क, I hit a bigger number of, मतलब success, or I can say bigger number of things I've done or experiences or people I've met, then I'll be able to give you pure gold. अगर मैं नहीं दे पाऊँ तब तक तो मैं क्या, अभी मैं एक रील देख रहा था बहुत रिसेंटली, बहुत ही जबरदस्त रील है। एक बंदा था, उसको आई थिंक क्या तो भी सीखना था, आई थिंक डेंटिस्ट से कुछ सीखना था। सो दैट गाय वाज लाइक, व्हाट आई डिड वाज आई फाउंड द बेस्ट डेंटिस्ट इन द टाउन। उसका मंथली इनकम $10,000 था। दैट गाय ऑफर्ड हर $20,000, या ऐसा ही कुछ है नंबर, लेट्स फोकस ऑन द लेसन मोर देन दैट, कि मतलब दैट गाय ऑफर्ड हर अराउंड 15,000 और $20,000 एंड टोल्ड हर कि बस उसको उनका एक दिन चाहिए। बट इस 10 साल में उन्होंने जितना सीखा और इस इनकम पॉइंट तक पहुंची, उसका सारा ज्ञान वो एक दिन में वो दे। She prepared for around 1 month for that one day, and that day what she gave him was pure gold of that industry. So similarly, what I feel is that there are a lot of experiences, and अभी आगे आप एक बात बताओ कि we look up at Ranveer Alabadia, at Raj Shamani sir, and a lot of people for business because they have successful businesses, they are investors. That's why we are like कि sir आप बताओ business कैसे करें। तो at the moment what I feel is I should reach a bigger level, I should have more experiences, and मेरे को क्या है ना, मतलब मेरे को ये सारी चीज़ों से उतना अटैचमेंट या उतना एक्साइटमेंट नहीं हो कि मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ ये हूँ, ठीक है, मतलब कॉलेजेस वगैरह में जा रहा हूँ वेडिंग, सो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज अ हैप्पी मोमेंट, इट इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यार काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड फील होता है। जहाँ भी मैं गया हुआ डिजिटली का लोगों था 10 लोग, पता नहीं है 6 मेरा हाथ वाथ पकड़ के, उतना जरूरत भी नहीं था कोई जानता नहीं था उतना, तो भाई इतना क्या हाथ वाथ पकड़ के, तो बॉडी गार्ड की तरह, तो वो सारी चीजें हैं। बट द थिंग इज ये चीज कहीं ना यार एक कैप लगा देगी मेरे ऊपर, एंड उससे मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं, बिकॉज जब मैं देखो क्या होता है ना कि whenever you are teaching people, you are like you have stopped where you are and you are teaching people. अभी समझो अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ स्वराज एडिटिंग कैसे करना, तो मैं एक मतलब समझो मैंने 1 महीने एडिटिंग सीखी, अब मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, बट मैं वो 1 महीने की एडिटिंग में जितना स्किल एक्वायर किया उतने स्किल में अटक जाऊंगा। तो मैं यार स्वराज तो मेरे को 5,000 रुपए दे रहा है सिखाने का, इतना रिकग्निशन मिल रहा है, मैंने स्वराज को एडिटिंग सिखाई, तो चलो एडिटिंग ही सिखाते हैं, बट उससे आप आगे निकल जाओगे, मैं नहीं निकल पाऊंगा। सो यू शुड स्टार्ट टीचिंग एज कि मतलब साइड बाय साइड चल रहा है भाई, कर लिया सिखा दिया लोगों को थोड़ा, या बात बात कर लिया, टॉक शोज में चले गए। बट व्हाट आई फील इज थोड़ा और सक्सेसफुल होंगे, थोड़ा और ज्यादा लोग जब जानेंगे पहचानेंगे, जब स्टोरी एक्चुअली में रिमार्केबल भी होगी, जब स्टोरी एक्चुअली में इट विल बी लाइक कि हाँ यार कैसे किया यार, जबरदस्त, तब एक्चुअली में यू विल फील मोर ग्रेटफुल टू बी ऑन दैट स्टेज, यू विल फील दैट यू ऑन दैट स्टेज। आई डोंट थिंक सो अभी मैं बहुत किसी ऐसा चला जाऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा ये रहूंगा, लाइक देयर आर 10 पीपल सी,
there's always a view from other people, मतलब मेरे को जितने भी लोग बोलते हो यू आर 19, अरे बस 19 साल के यार, गाड़ी है तुम्हारे पास, यू आर कैरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन, यू कैरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव लैपटॉप, घड़ी, ये वो। भाई सब क्या है ना, सब मटेरियलिस्टिक चीजों से तुमको ये करते हैं, मतलब तुमको इवेल्युएट करते हैं कि बंदे का औकात कितना है। एंड 19 ईयर्स की एज में इसने सब खुद से बनाया, बस दैट इज द थिंग, नंबर ऑफ फॉलोअर्स ये वो, बट द एक्चुअल थिंग इज दैट कोर नॉलेज विच यू हैव, एंड वो आई थिंक आई हैव, बट आई एम बिल्डिंग राइट नाउ। एंड इफ आई एम लाइक गोइंग ऑन द स्टेज, आई रियली वांट टू इम्पैक्ट लाइफ। मेरे को ऐसा नहीं मेरे को टॉक शो में नहीं जाना है, आई वांट टू बी देयर ऑब्वियसली, आई वांट टू, बट द थिंग इज जब मैं जा रहा हूँ एक्चुअली वांट कि मैं 10 मिनट बात करूँ, 1 घंटा बात करूँ, मैं टू द पॉइंट बात करूँ, एक्सपीरियंस वे में बात करूँ, विथ प्रॉपर फैक्ट्स, नॉलेज एंड स्टोरीज में चीजों को आंसर कर सकूँ, एंड मैं किसी के लाइफ पे थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकूँ, substantial impact कर सके। Probably it will happen by this year end or next year or next to next year, मेरे को नहीं पता। It will happen, it will happen after some time, but not as of now। मतलब जो आपका क्वेश्चन था कि यार इतना इतना आता होगा ये वो, the thing is जाता हूँ, बहुत बहुत रेयर जाता हूँ, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव रहता था, जाता हूँ, कोई जज वर्ज करने बुलाते तो थोड़ा करने जाता हूँ, but the thing is अगर बात आती है भाई आके मोटिवेशन तो मैं नहीं देता। मतलब एक दो कॉलेजेस में बुला के बोला भी था, टॉक अबाउट मोटिवेशन एंड सक्सेस, आई वाज लाइक मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉलेज है, आई टीच देम व्हाई योर स्टार्टअप नीड्स अ सोशल मीडिया आइडिया, and if that goes well, I'll teach people about how to create content, because that is something which I am confident on। मेरे को लगता है मैं जो बोल रहा हूँ it is making sense, ठीक है, and I've seen results, I've seen people, I can show you good examples of good successful people who are doing that, so I feel confident on that because I've invested my 2 years 3 years in that, and मैं 6 स्टैंडर्ड से सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही कर रहा हूँ, मीनिंगलेसली कर रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ डायरेक्शन में कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, हर बार लोगों से मिल रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मैं कंटेंट क्रिएशन पे कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, बट मोटिवेशन ये सब पे यार मेरे को लगता है अभी मैं ही खुद यार 100 प्रॉब्लम से जा रहा हूँ लाइफ में, तो मैं क्या बताऊँ लोगों को कि यार प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले खुद की लाइफ, प्रॉब्लम तो कहीं जाने नहीं वाली, बट स्टिल खुद की लाइफ में थोड़ा यार स्टेबल हो जाऊँ और ज्यादा, कि थोड़ा अच्छा भी लगे यार, कि अगर कुछ सौरांश को बोल रहा है या किसी को बोल रहा हूँ तो उसको लगे सुन के कि यार सही बात बोली है। इट शुड मेक योर वर्ड्स शुड नॉट बी मोर, इट शुड बी लेस एंड इम्पैक्टफुल। ज्यादा बोलोगे लोग सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये हो, कम बोलो और इम्पैक्टफुल बोलो। अब ये भी एक लेसन ही है जो मैं दे रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड ओवर टाइम एंड आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। इट इज बैक्ड बाय लॉजिक। अगर मैं बोलने लगूं नहीं सौरांश आपको लाइफ में ये हम्बल रहना चाहिए इसलिए मैं नहीं जाता, ये वो, भाई क्या, कोई मोटिव ही नहीं है भाई, जाऊंगा 100% जाऊंगा, बट थोड़ा बढ़ तो जाऊं, थोड़ा आगे तो बढ़ो। व्हाट इज द harm in sharing a knowledge with 10 different people? It's just not about fame, it's about meeting new people, learning from new people, so that's the thing, वही मेरे को लगता है, that's what I follow। I heard Shah Rukh Khan, like in a reel I saw of him, he said कि first become rich, then become a philosopher. I think वही चीज, that is the lesson that I can correlate. Obviously पहले खुद इतना ज्ञान बटोर लो कि you are eligible enough, you are experienced enough कि 10,000 लोग अगर किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो दे थिंक हाँ कि यार उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ किसी बंदे को सुन के। बहुत भाई सौरांश आप ही बताओ, अभी आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, ठीक है, आपको हो सकता है आने वाले टाइम में फंडिंग मिले, कुछ हो, आप बहुत ज्यादा ग्रो करो, विल बी द सेम सौरांश, यू लर्न अ बिट, अभी भी आप में उतना ही पैशन है इन सब चीजें, बट स्टिल if people are calling you right now and all that, उतना आपको सीरियसनेस नहीं मिलेगा। Exactly. बट आपको वहीं पे अगर कोई बुला रहा है बोल रहा है कि दिस इज सौरांश फाउंडर ऑफ एन यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ये वो, ही इज ये सक्सेसफुल वो सक्सेसफुल, खतरनाक इंट्रो, तब कौन है भाई, आई वांट टू टॉक टू हिम, टॉक टू हर, क्या क्या किया भाई, वो चीज, तो वो चीज आई थिंक अभी मैं बना रहा हूँ, वो चीज मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए, एंड वो चीज बनाते बनाते जो मैं सीखूंगा, दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव टू पोर आउट टू देम। Exactly. तो जब मैं बना लूंगा तो करूंगा। जल्दी किस बात की यार, किसी बात की जल्दी, थोड़ा आराम से चलो, एंजॉय करो प्रोसेस को, और चीजों को फास्ट पकड़ने की कोशिश मत करो, बट एक पेस में रहो, पेस में रहना इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रेस्टिनेट करनी आज नहीं कल करेगा परसों, जब इम्पॉर्टेंट, बट फेम मनी ये सब के पीछे डायरेक्टली मत भागो,
इनडायरेक्टली तुम्हारे पास वो सारी चीजें आ जाएगी, दिमाग में रहता है, अंडरस्टैंड, बट डायरेक्टली डोंट जस्ट गो फॉर मनी 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 फेम फेम फेम. Go for your work, it will get you money and fame. And you'll like it. There's no doubt in that. Okay. This is the answer to your question, bro. ऑल्सो लाइक ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि कम बोलो बट जितना बोलो उसकी अहमियत हो. दिस इज लाइक ये उसी बात से अश्नीर ग्रोवर की बात से रेजोनेट करता है. लाइक ड्यूरिंग फर्स्ट सीजन ऑफ शार्क टैंक ही सेड कि मेरे को अपने वर्ड्स की अहमियत है, मैं कम बोलता हूँ बट सही बोलता हूँ. Definitely. Let's move on to the next question. Okay, so let's take a turn towards building businesses and let's leave content creation for a while and let the audience digest the knowledge that you have shared on content creation till now. So tell people about what exactly is Digity, how big is the team, and what it takes to drop the fundamental idea of attending college and starting a company, and how you serve clients and like basically पैसे कैसे बना रहे हो. See, काफी कुछ तो यार, हर चीज आदमी बता नहीं सकता. Obvious, और obvious. एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है तुम्हारा खुद का मॉडल कितना ज्यादा सक्सेसफुल है. I will say that Digity is a successful company that's having great clients, and we have served at the best of our qualities. And the special thing about us is that our approach. The clients love our approach, and especially when we talk about Digity, Digity is a creative media company where we are providing end-to-end branding solution. I can say from website to softwares to apps to social media, collaborations, content creation, photo shoot, videography, ad, advertisement. हम सारे front पे हैं, and we have a team of over I think 25 or 30 people. A couple of them are offline and majority of them are online at the moment, because what we feel is that if we are employing someone on a project for a client, the best talent should be employed on that. So sometimes because of the geographical barrier, we being in Mumbai, we won't get the best talent. But someone from probably outer state or probably in some different state or anywhere in India can have what you need. होता क्या है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज करती क्या है कि मुंबई के, अगर एजेंसी है, मुंबई के एडिटर्स को बैठा लेगी, मुंबई के डिजाइनर्स को बैठा लेगी. बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वही एक डिजाइनर, वही एक एडिटर 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, वो सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, और क्लाइंट को भाई क्रिएटिव के नाम पे पता नहीं क्या ही मिल रहा है. This is the problem which most of the businesses we are dealing with right now have faced, and that's why they're with us. Plus, this is about Digity, that we are doing something crazy in terms of quality, and we are bringing up a lot of different things in these coming days, because हम भी काफी कुछ सीख रहे थे. We have went through our ups and downs, and काफी सारी चीजें हमने फेस की है. And Digity has succeeded as a company that made sure कि एक भी कंपनी का कुछ भी ups and downs have not affected a single client's delivery or quality. That is which I can say with complete confidence, with complete trust on my team and my partners and co-founders and everyone whom I'm working with. I have great people here. I am with people who are super talented. And we all are super young. सब 19-20-21 के, उससे बड़ा कोई नहीं है पूरी टीम में. कोई I think कुछ लोग हो गए जो 24-25 हो गए at max. So that एक चीज है हमारे में कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, they are not driven towards money. I don't know how I have found this team. एक भी बंदा पैसे को लेकर ड्रिवन है ही नहीं. अच्छा भाई क्या हुआ, अच्छा इस महीने कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कोई नहीं, नेक्स्ट महीने अरे यार क्या है इतना करता है. I have found such people. Basically, in startup, like there are times when you are facing financial issues and different things, and that's where a team comes together, and they're like कि कोई नहीं यार खींचते. But with God's grace, touchwood, I can say आज तक भी हमारे ऊपर एक भी liability create नहीं हुई है. There were days when we had nothing, and there were days when we had to achieve a 7 or 8 figure in like 7 or 8 days, and we have done both of it. I can proudly say that. And the team has been great from being
from a designer to a content writer to a video editor to social media managers. When it comes to the core team, they have been great people, great co-founders. And because of that, the company has succeeded. जिस सिचुएशन से हम गए हैं उस सिचुएशन में अगर एक भी बंदा पैसे को लेके ड्रिवन होता तो कंपनी आगे नहीं बढ़ती. Second thing is everyone is wanting money. There's no doubt in that. You do business to earn profits. A business is known for its profit. We are profitable. There's no doubt in that. When it comes to business, we are profitable. We are doing great. As a new company, we are doing very great. ठीक है. I can bet on that कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो मतलब जिस लेवल पे हैं उस लेवल का हम क्वालिटी दे रहे हैं एंड वी हैव गुड चार्जेस एवरीथिंग वी आर चार्जिंग वाइजली एवरीथिंग सारी चीजें. सो ज्यादा मैं नंबर्स बता नहीं सकता बट डिजिटी इज गोइंग ग्रेट आई कैन से. एंड अभी तो आई कैन से कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया है अभी. इट्स लाइक हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है. वी आर लर्निंग एंड अब जब हम उतरेंगे ना things will be different because the way we have shaped our team, finances, management, administration, delivery, output, sales, onboarding, everything has changed now. And I can say that this is something which we have learned from the experiences which we had, good and bad experiences. आप सबको खुश नहीं कर सकते तुम. तो like वो experiences की वजह से जितना भी up and down में तुम लोग गए. But one thing I can say with assurity and with I can say with conviction is that in the coming months or in the coming years, you will see Digity at a very good place and doing really great and doing definitely something different. Because हम 10 तरह की चीजें अभी प्लान कर रहे हैं. Probably you see a new series of ad, new revamp of Digity and a lot of stuff in the coming days. So अगर मैं ये हो गई अब business वाली बात कि मैंने बता दिया मेरा business क्या होता है. Now if I talk from an entrepreneur and founder's perspective, to jot down a couple of points, it's like number one thing is यार अगर बिजनेस में घुस रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब चीजें जितना पॉजिटिव दिख रही हो उतना पॉजिटिव हो. आपके दिमाग में आपका आइडिया हमेशा सबसे बेस्ट होता है बट ऑन द एक्चुअल ग्राउंड बहुत कम चांसेस होते हैं. Totally true. बट उससे कैसे आप ओवरकम करोगे, उस सिचुएशन में कैसे भी आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कंपनी कैसे बना पाओगे. व्हेन यू फाइंड द प्रोडक्ट मार्केट फिट. देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर हैविंग अ डिफरेंट आइडियोलॉजी विद डिजिटल. But the great thing which we did and जो हम सारे co-founders में भी so young still we have that wise approach कि let's test this out. हमने टेस्ट किया, रिस्पॉन्स गलत आया, ये वो हुआ, ऊपर नीचे गया. जब हमने कंपनी लॉन्च की then we were already having a couple of clients. ऐसा नहीं होता. It's like आप जब कंपनी लॉन्च करते हो तब आपके पास क्लाइंट आते हैं. We had acquired clients without launching the company. That was only because of our model. जो हमने मॉडल बना लिया नया वो काम कर गया, चल गया. So the thing is कि हमने मार्केट सर्वे किया, हमने रिसर्च किया, 10 लोगों से बात की, स्कोप देखा, देन चीजें चालू की. अभी भी हमें काफी डिफरेंट स्कोप दिख रहा है, काफी डिफरेंट चीजें दिख रही है. We'll do it. कोई डाउट ही नहीं है, कर लेंगे एंड चेंज करेंगे, इनोवेट करेंगे एंड काफी सारी चीजें लाएंगे. It's not even been like 6 months and we haven't gone till date. आप नहीं देखोगे कभी भी हमें सोशल मीडिया पर पिच करते हैं कि हम सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं. But still we are profitable, but still we are doing good. The thing is, our service is something which is attracting people. Customer satisfaction is something which is attracting us business. एक ही कस्टमर से हमें मतलब आई कैन से रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं, रिपीटेड सर्विस वेंडर्स आते हैं. एक ही कस्टमर जिनको हमारा कुछ XYZ काम पसंद आता है वो दूसरा काम भी कराता है, वो तीसरा काम भी कराता है. एक कस्टमर जहाँ सिर्फ मैं मतलब कुछ एक क्रिएटिव बनाने गया था, उनका सोशल मीडिया भी बनाया, उनका ई-कॉम भी बनाया, उनका फोटोशूट भी किया, उनका एड्स भी चलाऊंगा और उनके एडवर्टीजमेंट भी बनवाऊंगा. That is the conviction, that is the trust people have in us just because of the way of approach we have. We are not here as an agency कि भाई हमें तुम 25-30 हज़ार रुपए दे दो, हम तुम्हें 25 पोस्ट 30 पोस्ट दे देंगे, ग्रोथ के नाम पे बहुत फॉलोअर्स लगा देंगे. हम ये सब करने नहीं है.
हम इधर आए कंटेंट बनाने, हम इधर आए कंपनी के विजन को कम्युनिकेट करवाने. I have the strength in storytelling. I know how I can help brands communicate their vision well all over the internet. There are different strengths in different people which we have in our team and in our panel of co-founders. So that is something which has articulated together and is helping the company grow right now. किसी एक मेंबर, एक एडिटर एंड एक ग्राफिक डिजाइनर के भी मिसिंग होने की वजह से we wouldn't have come here. I can bet. That great team I have, and that's the connections I have. So that's the thing. You should have a great team. प्रोडक्ट मार्केट फिट देखो, टीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार. पैसे कमाना होना सब एक साइड है. बट थिंग इज, एक चीज होती है, पैसा ना एक लेवल ऑफ ग्रीड बनाता है एंड वो तुम्हारा रिलेशन खराब कर देता है विद इन को फाउंडर. अगर किसी एक को फाउंडर का भी मोटिव पैसा कमाना है तो वो तुम्हारे बिजनेस को आगे नहीं ले जाएगा. टिल डेट वी हैव ओनली इन्वेस्टेड एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर. अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते, अगर हमने से एक भी को फाउंडर ऐसा होता कि भाई वी वांट टू अर्न, वी वांट टू ये वो, तो हम नहीं इतने आगे आ पाते. प्रॉब्लम हमारा जो भी ऑफिस है एंड जिस तरीके से हम ट्रैवल करते हैं, आप हमारा देखते होगे भाई इतना ज्यादा. अभी कल पुणे जाके आए, उसके पहले पुणे गए थे, उसके पहले आई वाज इन दिल्ली, उसके पहले आई वाज इन अहमदाबाद, उसके पहले द होल टीम वाज इन बैंगलोर. इतना सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ टीम डेडिकेशन एंड हमारे सबके एटीट्यूड की वजह से कर पा रहे हैं. Everyone is dealing with Digity as their own company, and that is something which a founder should be able to create in their own company. That every employee should know their line of difference and obviously limitations and everything. But a good leader always makes feel like, मतलब जो उनका जो employees रहते हैं and उनके जो team members होता है, उनसे employees जो team members होते हैं, उनको हमेशा ये चीज फील होनी चाहिए कि it's their own thing. And especially for a startup, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. बिकॉज होता क्या है ना कि मतलब जब ये चीज नहीं होती है, मतलब जब ये चीज एम्प्लॉयज के बीच में नहीं होती है, तो सब ना कुछ मोटिव की वजह से तुमसे अटैच होते हैं. एंड मोटिव अगर पैसा है, ये सारी चीजें, तो ये सारी बहुत वीक चीजें थी, आई वुड से. सो बिल्ड अ टीम हु हैव ट्रस्ट ऑन योर आइडिया, ट्रस्ट ऑन यू. Have people who are there to support you, have the right co-founders who are more lesser than just co-founders and talented people who are more of your best friends. मैं एक बहुत सिंपल चीज बताऊंगा, मतलब I don't know how many people will agree with this or not, or like पता नहीं, but one thing I can say is that never, मतलब never क्या, मतलब it's like क्या होता है ना कि कोई भी स्किल, कोई भी चीजें अक्वायर की जा सकती है. ठीक है, यू कैन लर्न बिजनेस, यू कैन लर्न मार्केटिंग, यू कैन लर्न हाउ टू डील विद ब्रांड. ठीक है, बट एक चीज है ना जो कभी नहीं तुम ला सकते अपने अंदर, दैट इज पैशन, एम्बिशन एंड द, आई कैन से, मतलब जो अप्रोच होता है एक आदमी का, वो तुम कभी नहीं ला सकते. दैट इज समथिंग विच इज, जो खुद पे खुद विद टाइम जनरेट होती है. दैट इज समथिंग विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, दैट इज द कैरेक्टर और पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. So what I feel is, in your co-founders, finding co-founders is a task. ठीक है, मतलब जब मैंने भी चालू किया था तो मतलब it was like I was finding co-founders. Now we are 4 people as co-founders and everything. But the thing is, I stopped looking for people who were talented and who can lead something, because those people are always over-educated about things. तो जब तुम्हारे अंदर वो एक चीज रहती है ना कि यार गलत जा सकता है, आइडिया में दम नहीं है, तब तुम करते नहीं. तब तो तुम करते नहीं, तब तो तुम सीखते नहीं. द थिंग इज, अभी अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है, वो इससे 10 तरह की चीजें सीखेगा, अप्लाई करेगा. बट जो ये पॉडकास्ट नहीं देख रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ही विल बी सिटिंग हियर लाइक मी एंड स्पीकिंग अबाउट इट. मैंने भी यही सेम चीज करी थी. मैंने उतना किसी से सीखा नहीं, मैं आपको बोलता भी नहीं हूँ कुछ सीखो. इट्स ऑल अबाउट लर्न अबाउट द अप्रोच. द थिंग इज, co-founders and your team members में एक चीज होनी चाहिए, टैलेंट से ज्यादा पैशन होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर तुम्हारे और तुम्हारे को-फाउंडर्स में, पैनल में और टीम में लिंक्स, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
then in hard times you'll crash. This is my personal experience. Because when things are tough, you go rude, you shout at people. Things are not well, then there are responsibilities which are there on. Things are not well, then there are people speaking ill about you. Lot of things. अगर इसमें तुम्हारे पास राइट को फाउंडर एंड राइट टीम मेंबर नहीं है, तुम क्रैश हो गए. This is something I've seen personally. I've seen people doing it, and I feel lucky, touchwood again, that bhai gajab, I feel God gifted with the people I have in my life in business. From Mahi, Ansh, Varun, Rupal, Harshit, Ram, Fenil, content writers, there are a lot of people. These guys have been like great, great. ठीक है, great support. And ऐसे लोगों की वजह से हमारे टीम में ग्रोथ होता है. तो एक ही चीज है. एंड मतलब भाई टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर idea of product market fit is very important. Finance is very important. You need to focus on your money. You need to see कहाँ से पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है, कितना जा रहा है. एक पैसे का ट्रैक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने फर्स्ट जैसे नहीं किया था. एंड काफी सारे इश्यूज हुए थे उसकी वजह से बाद में. बट थिंग्स आर ग्रेट जब मेरे को सीख गया सब कुछ. एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट योर फ्यूचर. आपको सोचना चाहिए आप किधर जा रहे हो. हर समय आपको सिट बैक एंड जस्ट थिंक फॉर वंस कि यार हम जो कर रहे हैं क्या वो चल रहा है. क्या ऑलवेज क्रिएट अ ग्राफ. क्या जो हम जो कर रहे हैं उसमें ग्रोथ बढ़ रही है, हम बिजनेस में रिलैक्स हो पा रहे हैं. बिकॉज अगर तुम बिजनेस में एक सर्टेन पॉइंट के बाद रिलैक्स नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो. सो वो भी बहुत ज्यादा मतलब जोमैटोज फाउंडर दीपेंद्र गोयल, आई वाज लुकिंग एट हिज इंटरव्यू समथिंग वंस कि एक बिजनेस में एक एग्जिट स्ट्रेटजी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. भाई if you are not there for 5 days or a week, तब आपका बिजनेस का फेल हो जाएगा. then it is not a business, it is a job. तो ये एक चीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट आई फील इज कि आप हमेशा बिजनेस का आप कभी भी एग्जिट स्ट्रेटजी मत बनाओ बिजनेस का. ठीक है, इट इज अ थिंग व्हिच इज लाइक 7 years 8 years 10 years बाद आप सोच रहे हो कर रहे हो. हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट. ये मत सोचो पहले दिन ही बिजनेस बना दिया अगले साल एग्जिट कैसे. इट्स अबाउट यू सी इट गोइंग ऑन अ गुड लेवल एंड स्टेबिलिटी और एंड उसका एक ग्राफ बनाओ. आज मेरे पास 4 क्लाइंट है, कल मेरे पास 50 हुआ तो क्या मैं पैसे बना पा रहा हूँ फॉर द एफर्ट आई एम पुटिंग इन. ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ती है हर समय. यू हैव टू लुक एट थिंग्स एंड यू हैव टू कीप इनोवेटिंग योर बिजनेस मॉडल. सो ऑलवेज have weekly meetings और probably 3 का दिन में हर दिन बस कुछ ना भी होना डेवलपमेंट, फिर भी बैठ के एक बार बात किया कि भाई क्या चल रहा है, where are we going, क्या चल रहा है, कंसर्न देखो एक दूसरे के. and that's what we have done and that's what has had made us मतलब इतने डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए. एंड बहुत ही जबरदस्त चल रहा है यार, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. दिख ही रहा है मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है भाई. 5-6 घंटे लगातार ड्राइव कर करके नॉन स्टॉप. तो ऑब्वियसली तबीयत तो अप डाउन चलता रहता है. अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. बट द थिंग इज आई एम लविंग इट. हर सुबह उठ के ऑफिस आने का एक्साइटमेंट होता है और हर रात को ऐसा थक के जाता हूँ कि भाई पता भी नहीं चलता है कब सो गया. आई वाज सीइंग वन ट्वीट और एक किसी आदमी का तो स्टोरी देख रहा था मैं. इट वाज रिटन दैट you are not doing the right thing in your life if you are not waking up excited and sleeping tirelessly. Very So what I feel is कि at the moment मैं जब सुबह उठता हूँ मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है. मेरे पापा मम्मी मेरे को पागल बोलते हैं इसके लिए एक ही मोटिव. सुबह उठा आई एम लाइक ऑन माई टोज, फटाफट में कॉफी मारा है वो भाई, फटाफट नहाया हुआ बाल वाल ठीक किया मैं, जो भी अपना रिचुअल किया आपने थोड़ा फटाफट ऑफिस आई. इंटर लेगा ऑफिस खुल जाओ, आओ भाई बैठो काम करो. कुछ नहीं भी हो रहा दिन तब भी मैं ऑफिस में. एंड रात को आई एम नॉट लीविंग. लाइक 12 से 13 घंटे एवरी डे आई एम इन ऑफिस. मेरे को याद भी नहीं घर पे कब मिला. एक बार मैं दिन में घर पे था, मेरे को अजीब लगने लगा यार किधर हूँ, मैं भूल गया था अपना घर. मैं रूम में आया तो मेरे को याद है अरे यार मेरे पास ये है वो है तो वैसा सिचुएशन भी हुआ है. बट द थिंग इज दैट पैशन इज समथिंग व्हिच इज टेलिंग मी हर्षद गलत चीजें भी हो रही है, सही चीजें भी हो रही है, लर्न फ्रॉम इट एंड आगे जाओ. प्लस यार देख लो, मैं एक चीज ना गारंटी के साथ बता देता हूँ, अगर तुम कोई बिजनेस चालू कर रहे हो और अभी तक कुछ भी खराब नहीं गया है तो लिख के रख लो जाएगा. और ऐसा खराब जाएगा
कि तुम बोलोगे भाई प्लीज आई एम एग्जिटिंग दिस। एक सक्सेसफुल बिजनेस मेरे को बता दो जो कि बिना डाउनफॉल के आगे बढ़ाओ। टेल मी वन सक्सेसफुल बिजनेस who haven't faced any downfall or haven't faced a situation where they have to close down things. The truth of the industry is that लोग बोलते हैं 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं। एक्चुअली में 10 में से 10 फेल होते हैं, 100 में से भी 100 फेल होते हैं। सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं, वही एक दो सक्सीड होते हैं जो बोलते हैं मैं उठ रहा हूँ वापस। बिल्कुल। लेट्स बाउंस बैक, लेट्स फाइट बैक, चल भाई हो गया। वही स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं जो बोलते हैं लेट्स हिट इट, वापस वापस, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, एक और ट्राई। मैं पिक्चर्स का एक मतलब अभी तक पिक्चर्स देखा नहीं, एक रील देखा कि आई थिंक ट्विटर वाज समथिंग एल्स। पहले बहुत साल पहले इट वाज कोई और ऐप के नाम से था, इट वाज समथिंग लाइक आईट्यून टाइप का कोई ऐप था। राइट नाउ इट इज स्टिल इन योर फोन बट ऑन द नेम ऑफ ट्विटर। एंड दैट इज द थिंग यार, दैट इज द थिंग। मतलब होता क्या है कि व्हाट आई फील इज दैट बिजनेसेस और बिजनेस फाउंडर्स में एक कैरेक्टर होना चाहिए, पिवट होना ही चाहिए। You should know when to pivot, you should know when things are crashing, and you should know how to deal with it. See, I can say that till date we have understood कि हमें कहाँ पे pivot करना है, कहाँ पे चीजें stop करनी है, कहाँ पे चीजों को grow करना है और कहाँ पे expansion को रोकना है। कभी कभी expansion को रोकना भी एक right decision होता है, क्योंकि capacity नाम की भी एक चीज होती है। You should know your capacity, you should know your expansion, you should know a lot of things. तो ये चीज है, ये all these things are very important. Plus, as an entrepreneur, as a founder of Digity and a lot of businesses coming in these years and everything, what I feel is that I have the one thing which Digity has given to the whole team is that we in and out daily we are dealing with businesses. हमारे दिन नए नए बिजनेस फाउंडर से मिल रहे हैं, उनका अप्रोच, उनका विजन समझ रहे, उनका बिजनेस मॉडल समझ रहे। तो हम तो सीखते तो यार डेली बहुत है, फाइनेंस से लेकर हर चीज के बारे में। तो इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर, वो चीज है। बस यार यही है बिजनेस को लेकर, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ काफ़ी कुछ। लाइक मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आई मीन ओ कि क्या ही कर दिया है हमने इस पॉडकास्ट में। लाइक अलग लेवल की एक ज्ञान की नदी बह रही है एंड आई एम एंजॉयिंग लिसनिंग टू यू। ओके सो लाइक रैप करते हैं थोड़ा फन रैपिड फायर से पहले। आई हैव जस्ट ओनली वन क्वेश्चन कि लाइक हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी। इज इट स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, एफडी या फिर सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है? अभी क्या है ना कि अभी आई एम नॉट इन्वेस्टिंग एनी मनी। बीच में मैं कर रहा था इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स, बट राइट नाउ व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इज इन एक्सपीरियंसेस एट द मोमेंट। मेरे को पता है मैं तब इन्वेस्ट करूंगा थोड़ा टाइम और ज्यादा, मैं थोड़ा और स्टेबल इनकम करूँ, क्योंकि आजकल मेरी इनकम कभी इधर है, कभी इधर, कभी इधर है, कभी इधर, कभी एकदम ऊपर है, कभी। तो फिर यार वो तो अभी आई कैन से कि राइट नाउ इज द टाइम टू नो हाउ टू डील विथ मनी, how money flows in and flows out, and how to deal with your daily expenses, how to minimize it to the maximum profit. ठीक है, तो अभी वो सारी चीजें मैं ज्यादा सीख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंसेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड मेरा एक ड्रॉबैक है कि यार मैं थोड़ा शौकिया टाइप का इंसान हूँ। मेरे को गैजेट से, जैसा मैं बताया, लगा हुआ है, गाड़ियों से बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो मैं वो सब में थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ कभी कभी, एंड डांट भी सुनता हूँ, बट ठीक है, कोई नहीं, चलता रहता है। वही चीज है यार, इन्वेस्टमेंट करो, इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, बट व्हाट आई फील राइट नाउ इज दैट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, इन्वेस्टिंग इन योर एक्सपीरियंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यंग पीपल आर डूइंग रॉन्ग इज 18 होते ही दे वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। भाई बहुत ही जबरदस्त चीजें सीखनी चाहिए, करनी की चीज। बट मतलब राज चमानी सर के मतलब इसमें देखा था मैंने लाइव सेशन में, इज दैट when you are that young, आप ऐसे स्किल्स एक्वायर करने में इन्वेस्ट करो जहां से आप इनकम क्रिएट कर सको, ना कि जो पैसा आ रहा है बस उसको डबल करने के पीछे बन जाओ। आज मेरे पास 1000 हुआ, स्टॉक मार्केट मानूंगा 1500 हो जाएगा, बट जो तुमको 1000 आया वो कहीं तुम किसी कोर्स में इन्वेस्ट करो, बुक में इन्वेस्ट करो, एक्सपोजर में इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंस में, वो चीज तुमको एक नया
वर्टिकल देगी, पाथ देगी एंड एक नया एड ऑन देगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, एंड दैट विल क्रिएट वो 1,000 का 2,000, create that multiple exposure and experiences first, then go ahead with investing. That's what I feel. And मैंने भी इन्वेस्टमेंट चालू किया था, बट ये रीजन की वजह से आई stopped investing in between, but I'll be investing like by this year end or something like that. But अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रैवल करना हो, चाहे वो लोगों से मिलना हो. लाइक आई गो क्रेजी टू मीट पीपल. अगर मेरे को कोई पता है भाई ये कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी है जिसने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है, सेल्फ बिल्ड है, सब है, आई एम लाइक सर आप किधर हो, आप पुणे में हो, आप अहमदाबाद में हो, दिल्ली में, मैं फ्लाइट का टिकट ले लूंगा, होटल का स्टे ले लूंगा, ड्राइव करके चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, पूरी टीम को लेके कभी कभी चला जाता हूँ. चलो भाई सब सीखते हैं बैठ के, बट वो जो सिखा देते थे उससे प्रॉब्लली हम कितना नेटवर्क बना देते हैं उसका कोई आइडिया नहीं. Exactly. बिकॉज दैट टाइम इज एन इन्वेस्टमेंट. अगर मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया किसी ट्रिप में, तो मेरे को सामने वाले का 50 लाख वर्थ ऑफ टाइम मिला. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. सो लर्निंग इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, बट वो टैंजिबल नहीं है, बस इसलिए तुमको पसंद नहीं आता इन्वेस्टमेंट. बट द थिंग इज दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट. वो एक चीज है. क्या आप बताओ, कर बाकी दिया क्या है है, हर्षद आपका भाई, क्या कर दिया है, मजा ही आ रहा है बहुत ज्यादा. अल्टीमेट कॉन्वर्सेशन. ऑब्वियसली हम इसका अगले साल वरना 6 महीने में, 6 हफ्तों में पता नहीं, दोबारा बना रहे हैं. मे बी जब डिजिटी पहुंच जाएगा 10 फिगर अगले साल, विल डेफिनेटली मेक अ सेकंड एपिसोड. definitely भाई, definitely. बहुत मजा आ रहा है. तो चलो ज्यादा ही ज्ञान बह गया है, अब ओवरवेल्म ना हो जाए लोग. तो लेट्स एंड दिस विद फन रैपिड फायर क्वेश्चंस विद यू. तो लाइक Sure. थ्री फेवरेट फूड आइटम्स जो लाइक हमेशा खा सकते हो, रोज खा सकते हो. मोमो. मुंबई से हो? मोमो भाई, मोमो एंड समोसा पाव. तीसरी कोई चीज नहीं है? मोमो, समोसा, पाव, ये 2 चीज यार ऐसी है ना, मैं कभी भी खा. एंड पनीर भाई, गजब ही भाई, अलग ही प्यार है पनीर. चलो दिल्ली वाले यहाँ पे रॉक करते हैं. वड़ा पाव नहीं बोला, मुंबई से हर्षक भाई, एंड ही हिज फर्स्ट थिंग इज मोमोज. तो चलो वड़ा पाव पसंद है, बट ऑल डे ऑल इन यार बहुत ज्यादा आलू आलू हो जाता है. आलू ही हो रहा हूँ मैं खा के. ओके. सो 3 फेवरेट मूवीज या बुक्स? बुक्स तो नहीं बोल सकता, बट मूवीज में नंबर 1 विल बी. यार मूवीज उतना मैं देखता तो नहीं हूँ, बट नंबर 1 द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट भाई, गजब सेल्स जितना उससे सीखा मैं है. हर 2-3 महीने में देखता हूँ उसको एक बार. अच्छा, नहीं, ग्रेट ग्रेट मूवी. एंड उसके बाद आई थिंक उतना तो मतलब ये 2 ही मूवीज हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. बट ऑन द कॉमेडी पार्ट एंड एवरीथिंग आई लव वेलकम. वेलकम मेरे को बहुत पसंद है. वेलकम पसंद है बहुत ज्यादा. मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज? माय कार, होंडा सिराजी. ग्रेट. ओके. सो मेरा फेवरेट क्वेश्चन, इज इट मनी फर्स्ट और फेम फर्स्ट? भाई साहब, आई थिंक इट इज मनी फर्स्ट और फेम फर्स्ट. भाई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार. इट इज लाइक दोनों चीजें सुपर मटेरियलिस्टिक है, दोनों चीजें कहीं ना कहीं. आई थिंक it is money first, because money can solve a lot of problems which fame cannot. So I think money is very important. अगर मेरे को अपने कंपनी में सैलरी देनी है, या I want to buy something for myself, or I want to give my mom and dad a good lifestyle, I need money, I don't need fame. Exactly. And money can buy you fame. We know how PR works. बहुत लोग पैसों की वजह से ही आगे बढ़ते जा रहे, हमें पता है. नाम नहीं ले सकते. थ्री हॉबीज या लेजर एक्टिविटीज जो फ्री टाइम अगर मिले, या फिर ट्राई करते हो कि हाँ यार इस एक्टिविटी या इस हॉबी के लिए मैं फ्री टाइम निकाल लूं? ड्राइविंग बहुत ही ज्यादा पसंद है मेरे को. मेरा तबीयत खराब था फिर भी मैं 5-5-6 घंटा ड्राइव करता हूँ. अभी पॉडकास्ट से पहले ड्राइविंग बात मेरे कर को बहुत रहे थे. ज्यादा पसंद है. बहुत ही ज्यादा ड्राइविंग पसंद है मेरे को. मैं बस गाड़ी में बैठ जाता हूँ, ओपन माय सनरूफ, चारों शीशे, म्यूजिक फुल ब्लास्ट पे, एंड सीट तो मेरा वैसे ही पूरा ऐसे लीन रहता है, और भाई अपन चला रहे थे गाड़ी.
और बहुत मजा आता है। ड्राइविंग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, डांसिंग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। एंड मतलब डांसिंग इसलिए पसंद है बिकॉज काफी ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा। इट्स लाइक मैं एक्चुअली ड्रिंक नहीं करता या स्मोक नहीं करता है कोई भी वैसे एक्टिविटीज में नहीं, बट डांसिंग के लिए मेरे को क्लब्स बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज भाई इतना मजा आता है ना भाई, क्योंकि मेरे कोई भी दोस्तों में कोई करता ही नहीं है सब। तो जब हम लोग एक दो बार कभी गए हैं तो हम लोग ऐसा खुल के नाचे, बिकॉज हम लोग कुछ करते तो है नहीं, तो किसी का एनर्जी डाउन वाउन नहीं होता है, सब घुस के भाई से बचे नाचते हैं। एंड थर्ड थर्ड लीजर एक्टिविटी, देखो ड्राइविंग हो गया, डांसिंग हो गया, दोनों डी डी से चालू है वहां पर। आई फील थर्ड इज समथिंग लिसनिंग टू म्यूजिक। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक एंड मेरे को गाना पसंद है, बट मैं गाता नहीं हूँ, लाइक वैसा नहीं गाता हूँ। तो आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा। लाइक मैं आई have very few people in my life, to be very honest. मतलब I have a lot of people who are there and they are helpful and everything, but like मेरा एक अप्रोच रहता है यार, मैं ना टाइम उन्हीं को उनके साथ शेयर करता हूँ जो एक्चुअली में मेरे लिए कंसर्न है एंड एक्चुअली में दे वांट टू सी मी गो एंड एक्चुअली में दे आर देयर लाइक कि भाई हमें पता है हम तेरे को किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकते, फिर भी हम करेंगे। वैसे टाइप के दोस्त भी होते हैं। I've seen people like that as well. तो I love spending time with my friends बहुत ही ज्यादा, and I'm glad that मेरे ऑफिस में सारे लोग मेरे फ्रेंड ही हैं, तो सबको मेरा इन एंड आउट पता है। एंड सबके साथ जब काम हो रहा होता है तो ऐसा काम हो रहा होता है भाई, लड़ाई वड़ाई भी हो रहा होता है, ये क्या कर दिया है, ये वो ऐसा। बट जब हम बैठते हैं और मस्ती करते हैं भाई, इतनी मस्ती करते हैं, तो आई थिंक लिसनिंग म्यूजिक, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, ड्राइविंग ऑन प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। अभी भी मैं जाऊंगा तो ड्राइविंग करके जाऊंगा घर, तो भाई पूरा खोल खोल के गाना गाना बज रहा रात के, तो वो चीज है। डांसिंग इज लाइक क्रेजी भाई, मेरे को डांस आता नहीं है, अपन वो गणेश चतुर्थी वाला डांस करते हैं भाई। अगली बारी बना पक्का के करने मस्त वाले है, हम लोग बहुत साथ serious में। time। मतलब बना दिया भाई वीडियो तो एकदम वायरल ही जाना है। बस फिर बना रहे हूँ इतना मैं, जब आ रहा हूँ करेंगे। मुंबई या फिर अभी नेक्स्ट जब दिल्ली आ रहे हैं तो यही करना है। मैं बस बस भाई, डन है, डन डन है। डन है, ओके, डन। तो एक आखिरी छोटा सा क्वेश्चन, एक तो एट सेटअप सोरांश व्हाट वी बिलीव इज कि हम अनफिल्टर्ड रखने का ट्राई करते हैं कॉन्वर्जेशंस, रॉ एकदम, जो स्पीकर जो गेस्ट आया है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, कोई फिल्टर नहीं, नाम नहीं लेने या कुछ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ अपना जो दिमाग बोल रहा है, दिल बोल रहा है, साफ साफ बोलो, लाइक वी बिलीव इन दैट। तो लाइक एक बिग अनफिल्टर्ड एडवाइस फॉर all the 16 17 18 year olds trying to create content, trying to building businesses at the moment, from all the experiences, वही वाली बात कि पिछले 4-5 साल में जो सीखा है, मे बी अगले 2-3 मिनट में समराइज कर दो सारे 15-16 साल के बच्चों के लिए जो हमसे छोटे हैं। मतलब यू आर टेलिंग एन अनफिल्टर्ड एडवाइस, जो कि मतलब मेरे को हाँ, दिखता है ऐसा मतलब एकदम अश्नीर ग्रोवर स्टाइल में। यार अश्लील ग्रोवर सर तो भाई अपने लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है उनके लिए। उनका ओजी भाई। देखो यार, एडवाइस बहुत सारे हैं, ठीक है, बट एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो दिल कह रहा है ना और जो दिमाग कह रहा है, हमेशा कभी ना कभी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। बट एक तुम्हारे दिमाग में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? तुम्हारा सेल्फ इमेज। अपना सेल्फ इमेज बनाओ एंड स्टैंड अपॉन इट। से लाइक फक इट भाई, मैं ये मेरा सेल्फ इमेज है, दिस इज समवन हु आई एम गोइंग टू बी इन द कमिंग डेज एंड आई एम गोइंग टू लाइक वर्क हार्ड फॉर इट। आई एम गोइंग टू डू ऑल द शिट आई नीड टू डू, नो मैटर व्हाट एक्सपेक्टेड पीपल आर टेलिंग। इट्स लाइक अक्वायर करो, सुनो, जैसे सीखना एक अलग बात होती है। बट अगर तुमको कोई, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ यार, इतना मैंने ह्यूमिलिएशन अपनी लाइफ में फेस किया, आई नो। जब मैंने कंटेंट चालू किया था, आई यूज्ड टू लाइक वॉक डाउन इन माय सोसाइटी समटाइम्स एंड देयर वर पीपल हु वर लाइक, अरे मोटिवेशनल स्पीकर आ गया हियर इन डीएम देयर। I'm not a motivational speaker today, but that self-image that I want to do something extraordinary, I want to work hard, I want to create something, I want to be a successful businessman, शायद मैं उस तक नहीं पहुंचा हूँ,
But the thing is, people will tell you tons of shit. Nobody will ever support you. Don't even expect your parents to support you. I was lucky in my case, but majority scenario पे नहीं होता है. Your best friends, your people whom you look up to will tell you क्या कर रहे हो. Take everything. सारी चीजें लो, एनालाइज करो, बट सुनो दिल की. बहुत रिस्की है. एंड प्रोबेबली जो वो 100 लोग कह रहे होंगे वो 100 चीजें होंगी, बट 5 year डाउन द लाइन अगर मैं सबकी सुनने का, अरे मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, अरे तो मेरे को यार मैं उस समय क्या करता, मैं नहीं बनाता कंटेंट यार. ऐसा दोस्तों में नाम खराब हो रहा है, कोई मिलना मिलना नहीं चाहता, सब बिच करते हैं, सब ये करते हैं कि भाई अरे मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है, अरे कंटेंट क्रिएटर आ गया, अरे बोलेगा अभी ये. इतने लोग ह्यूमिलिएट करते थे, ये करते थे. कितने लोग you have closed ones who are not in support with you. There are people who will change, but I'll tell you one thing that everyone changes. ठीक है, एक बार तुमने कुछ कर लिया ना लाइफ में, यू हैव टू लेट योर वर्क आउट. सबने जब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चालू किया था, जितने भी सक्सेसफुल फाउंडर्स एंड बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबको कुछ ना कुछ सबने बोला ही था. या फैमिली ने सपोर्ट किया होगा, या फ्रेंड्स चले गए होंगे, या कुछ हुआ हो. दिस हैपेंड विथ मी यार. जब मेरे को उन्होंने बोला कि भाई ये आ गया, वो आ गया, इधर उधर क्या ही उखाड़ लेना हो, ठीक है, उसी सेम ईयर में विद इन लाइक मतलब अगले ही साल उसके आई वाज एट 100K. एंड आई वाज द वन टू डिसाइड कि मेरे आसपास कौन है और कौन नहीं है. तो अगर खुद में विश्वास है तो सामने वाला तुमको कोई कितना भी कुछ बोलना मत सुनो. इधर सुनो, इधर चलाओ, लॉजिकल स्टेप्स लो, बट लो. गलत लग रहा है ना फिर भी ले लो. अंदर से लग रहा है ना यार कुछ हो जाएगा. मैं तुमको बता रहा हूँ, कुछ नहीं भी होगा ना तो इतना सीख के और इतना मेच्योर होके निकलोगे ना कि 2-3 हिट और जो मारोगे ना उसमें चौथा हिट हो जाएगा, पांचवा हिट हो जाएगा. और जब वो हिट होगा ना, तुम जो अपना पूरा लाइफ जहाँ डाल रहे थे ना, वो तुम्हें एक दिन में अचीव हो जाएगा. That's the thing, that is the raw, most unfiltered advice which I want to give to everyone is that मत सुनो सबकी, अपने दिल की सुनो. अगर तुम जहाँ अच्छा काम करने निकले हो, if there are people barking at you, बहुत सही जा रहे हो. इतना याद हो, if they are barking, मतलब barking in the sense that क्या कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर क्या है. If there are people barking at you, let them bark. Because then you are on the right path. Because एक मेंटालिटी होती है सबकी, एक दूसरे को ऊपर नहीं बढ़ने देना. Everyone who told me कि तुम 19 year old हो, ये वो, मैं बहुत मोटिवेशनल नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, but that is something from my unfiltered side. कि जितने लोगों ने भी बोलना है, they are all shocked that at this age how I am doing this well. अब वो मेरे को मॉरली देख रहे हैं कि मैं वैल्यूज दे पा रहा हूँ, मैं ऐसे पॉडकास्ट में बात कर पा रहा हूँ, या मैं इनवाइट किया जा रहा हूँ, या मैं किसी के साथ लिंकअप हूँ, या मैं बड़े लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, या वो ये चीज देख रहे हैं कि ही इज कैरिंग द बेस्ट ऑफ द गैजेट्स, और ही इज हैविंग कार, और ही इज हैविंग मनी. आई डोंट केयर. आई एम डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दैट, एंड देयर आर स्टिल पीपल स्पीकिंग, बट आई डोंट केयर. माय वर्क आंसर्स इट, माय टीम आंसर्स इट, आवर यूनिटी आंसर्स इट. सो जस्ट वर्क फॉर इट. तुम क्रिएटर हो, तुम्हारे पास 10 हिटर आएंगे, बोलेंगे क्या बना रहे भाई. इफ यू नो व्हाट यू आर मेकिंग, नोबडी एल्स वांट्स टू नो. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि पहले 50 लोग तुमको पसंद ना करें, बट वो अगला जो 100 का बैच था वो तुम्हारे फैन थे. So there is always a curve to it. So always look up for that and never get that demotivated, because आजकल होता क्या, जैसे ही तुम बढ़ना चालू करोगे ना, तो आराम से बैठ कभी ना कभी आपके साथ ये चीज हुआ, किसी ना किसी तो बोला होगा यार कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या कंटेंट क्रिएशन, ये क्या, ये हर हफ्ते किसी सुनने ने को फ्रेंड मिलता ने है. बोला होगा, फ्रेंड ने बोला होगा, किसी फैमिली मेंबर ने बोल दिया होगा. ये चीज जान लो यार कि कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कर ले, एवरीवन इज गोइंग टू बी देयर वंस यू सक्सीड. दैट्स इट. यही है भाई. Legendary points, हर्षक. Like इस conversation के बाद personally I have only learned a lot, and definitely audience के पास एक बहुत अच्छा piece of podcast, piece of content जा रहा है हमारी तरफ से. And I think I'm glad. this is a gold mine for all the 15, 16, 17 year olds who want to start their journey out there in content creation, या फिर
social media as a whole. They want to start their own agencies or even build a business in general. I think the things we have talked about were very amazing. Like personally, I don't have words. मतलब मुझे खुद ही इतना कुछ सीखने को मिला है. As a content creator, I draw so much inspiration from you. I always love talking to you, man. Like as I told you, you are my big bro. Like obviously मैं हमेशा and you know तुझे भी कि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है, I always come to you and to seek Always, yeah, your always there's a advices lot to and learn stuff. from you, and obviously the people who are watching this video, probably there's a lot they have to tell, and they have to contradict. So always the comment section is open. अगर किसी को भी कुछ thoughts है, कुछ मतलब perspective है, then definitely I'm open to it. And obviously, yaar, always talking to you, Saransh, is a pleasure because we are the same, yaar. We have the same energy. We have the kind of vision and that thing. So it's not always about the numbers and what you have done. सब टाइमिंग का खेल है. समझे भाई. आज आप कभी मेरे से बहुत आगे हो गए, मैं कभी आपसे बहुत आगे होऊंगा. इसमें आगे पीछे का गेम नहीं होता. इफ यू लुक एट नंबर्स देन हमेशा यू आर बिहाइंड समवन. But you look at Exactly. personality, you look at character, then definitely there's a lot of things to learn from you, your passion, and definitely यार अभी तो चालू है चीजें. आपका भी अभी काफी आगे जाना है और I see that कि आप काफी आगे जाने वाले हैं. And I definitely know guys कि आज से भाई 3-4 साल बाद फरहान किधर होगा पता नहीं यार. उसके बाद शटअप फरहान पे वहाँ पाएंगे कि नहीं क्या पता. नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली हम सीरीज कर रहे हैं आगे, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है. Definitely. अमेजिंग यार, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया है. लाइक दिस इज़ द सेकंड पॉडकास्ट दैट वी आर रिकॉर्डिंग और हम लोग 9 बजे से बैठे हैं, रात के 11:30 बज चुके हैं. हर्षक अपने ऑफिस में है, उसको घर भी जाना है, उसकी तबीयत खराब है. लाइक दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट हर्षक हैज. आई हैव. आज मैं ऑफिस आया ही हूँ भाई स्वरांश के पॉडकास्ट के लिए. हाँ, exactly, रात को आया है वो. खराब लग रहा था मेरे को. इतना खराब लग रहा था मेरे को. मैं आया हूँ इधर, मैंने आई थिंक दूध ऑर्डर किया, फिर आया, मैं चाय बनाया, फिर और मीटिंग्स अटेंड किए. मैं अकेले आया था, फिर मैंने काफी सारे मीटिंग अटेंड किए. फिर मैंने स्वरांश को बोला भाई 15 मिनट 20 मिनट फिर एक बार क्लाइंट के साथ बैठ जाया. फिर वो मैं एकदम कहीं और नहीं देखता हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लग गया. एंड यार फिर भी स्वरांश भाई आपने इतना वेट किया और इतना बार बार रिवीजन डाला, रिमाइंडर डाला. यार आई डोंट फाइंड माई सेल्फ उतना केपेबल कि आप इतना ज्यादा ये कर रहे थे. बट थैंक यू सो मच इतना ज्यादा वैल्यू देने के लिए. आई फील रिस्पेक्टेड, आई फील हम्बल्ड आपके अप्रोच की वजह से. एंड थैंक यू सो मच यार. एंड आई वाज एबल टू कम यार भाई. मेरे को था कि मेरे को करने का, बिकॉज मेरे को बात करना बहुत ज्यादा पसंद है. बट वही है यार, वाइब मैच करनी चाहिए. मेरे को वैसे पॉडकास्ट नहीं पसंद जहाँ बस मतलब बहुत ही जेनरिक चीजें हो रही हो कॉन्वर्सेशन होना चाहिए. सो आई थिंक शट अप स्वरांश एज अ पॉडकास्ट इज हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन, that thing which is I think touching every vertical of a successful person. I won't call myself successful, obviously I never will. So definitely we have a lot to see in the future. And definitely Saransh, एक बार you have a lot in you as well. So this idea is great, and I believe that consistency and the amount of quality, the pattern which you have is awesome. Just follow it, just maximize it, and things will go really well. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. एंड डेफिनेटली जो भी लोग देख रहे हैं, चेकआउट डिजिटी. अगर कोई कंपनी का कोई मेंबर देख रहा है, फाउंडर देख रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर देख रहा है जिसको काम करना है, करवाना है, डू रीच आउट टू हर्षक. You can search Harshak Sinha on Instagram. Go follow my brother. और किसी को भी कुछ काम है, you can reach out to him. Thank you so much, Swaransh. The thing is that यार हम लोग काम एक सर्विस रेंडर टाइप नहीं करते. हम लोग आपकी टीम बनते हैं. We plug in everywhere it is possible, and we work towards your business, as your team, as your vertical, marketing vertical, and that tech वाला vertical. So definitely अगर हम एक टीम की अगर आप एक टीम ढूंढ रहे हो, एक राइट पर्सन ढूंढ रहे हो जो कि आपके बिजनेस मॉडल को समझ के एंड वो वर्टिकल को समझ के काम कर सके, देन प्रोबेबली वी विल बी द राइट पर्सन. एंड बाकी तो भाई सब सही चल रहा है यार. करते हैं काम यार. काम बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है.
लगे रहो, बस दिल की सुनना, लगे रहो भाई, बाकी और क्या है, लोग तो बोलते ही रहेंगे। बस आगे कुछ बोलना नहीं है, इसी लास्ट एडवाइस पे इसको ख़त्म करते हैं। एंड हाँ यार, नया नया सीख रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो फॉलो कर लो। एंड डू कनेक्ट विद हर्षक ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो हिम, क्रेजी कंटेंट। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। प्लस भाई सौरांश भाई का ये पॉडकास्ट फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सब देखो भाई, प्रमोट करो, शेयर करो, अगर कुछ अच्छा सीख रहे हो तो। हम अपने सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे भाई। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हैं, इतना सहनशीलता है हमें सहने की, तो थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी तो भाई चलो गाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। यहाँ तक देखा है तो यू आर द क्रेजी वंस, तुम कुछ बड़ा बनाने वाले हो अगर यहाँ तक बैठे हो, इसको सुन रहे हो तो। चलो बाय। एंड या चलो बाय, और क्या ही बोलें, बाय। बाय गाइस।